So we have a lot of expectation here, and the people who have connected, they also coming with expectation, and let's just do a brainstorming to get success here, how you can go ahead in your career. So let's start the session today, and the session is getting started with the statement that 90 out of 100 students are thinking this way: where to go, what to do. So am I actually eligible for what I'm thinking? And which course I should choose for myself? Which subject stream I should choose for myself? After 10th, what subject stream I should choose? After and 12th, what course and college I should choose? So that is the big problem of the students today. And how to start, where to go. So there are a lot of questions comes in the mind. So Chatura, you also feel something like that? Yes, sir, exactly like you described. Okay, great. And they get confusion, and parents are also putting little bit things upon them that you have to do this, you just study hard, you do work hard, you have to win the competition, you have to go this thing. And peers, friends, relatives from everywhere, they hear something, but they are not getting some solid and uh, crystal clear decision in the mind. So that is the problem with every students. So which language you people are comfortable? Are you comfortable with English or Hindi? You can put it here. So we can discuss in English or Hindi, or in the both the languages in English, Hingreji. So what language would you? And there is somebody, Swaraj joined recently. Just Sai also. Sir, Swaraj is my son. Okay, great. Thank you. English is okay. Yeah, it's fine, sir. Okay, that's nice. Same here. English is okay, Chatura. That's nice. It's okay. So let's move ahead. So we will deliver in both the languages together in case somebody, yeah, English is okay with everyone. Wonderful. Okay, let's move. So the objective for the today's this 90-minute session is how to decide a right fit career, how to decide the right fit pathway to get success in our career. So that we are going to discuss a lot. And what things are here which would be discussed in this 90-minute session? The first thing is how to decide the right fit career pathways to get the right success in career and life. And the second is what is required to achieve the goal of our life, if it is there. And if it is not there, then we have to decide it. And the third thing, how to achieve that goal of our career, and which is or which may be the goal for our life also, so that we can live with happiness, we can live satisfied, and we can grow to the expectations of ourselves and our family and even our country also. So these three things would remain in the focus during this session today. And let's start it. The slide on my screen is saying something, and I ask everyone here, what do you interpret from this slide? What do you understand from this slide? So you can answer anything, whatever comes in your mind. Whatever you interpret, please open your mic and just tell your opinion. What do you think? What do you understand from this slide? I think that Successful people. Club B indicates the normal citizens of India, like the employees, and Club A includes like the superstars or rich people, which we children consider that they are successful. Great, And Chatura.
Clapping. even normal people consider that they are the successful ones. Great, great, bache. The clapping for you. Why clapping? Because you just took the decision to just speak, and we all were waiting for this. Okay, just sigh. You can open your camera also in case you feel comfortable. Famous people and normal people. So there is one club that is called Club A, and there is a one club, Club B. Club B has a big crowd. Club A has people on fingertips. Very few people comes in Club A, and there is a big crowd in Club B. So what is the significance here to discuss these two clubs? So the people who are here, I would like to ask your insight in which club you would like to be. Oh my God. कौन से क्लब में रहना चाहोगे? Which one club you want to be? So we are not going to charge anything for just to transfer you from club A to club B. So you can put your freely opinion here. हम आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाले. कौन से क्लब में आप रहना चाहोगे? जस्ट प्लीज. ओ माय गॉड, शिवानी जी के पास से आया क्लब ए, एंड राम्या जी ने कहा क्लब ए. ओ माय गॉड, यस. एवरीवन प्लीज, एवरीवन, दोज हु आर हियर. चतुरा मेहत्रे, क्लब ए. वाओ. देन मैं आप सबसे इसमें इनपुट चाहूंगा आपका कि आप जरूर लिखें. जस्ट शाई ने लिखा क्लब बी. यस, नेक्स्ट प्लीज. आई गॉट 4 आंसर्स हियर. ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम शिवानी वेंकट. व्हाई यू वांट टू रिमेन इन क्लब ए प्लीज? क्यों रहना चाहते हो क्लब ए में? ओपन योर माइक प्लीज. लेट्स मेक इट अ वर्कशॉप हियर. मैं बोलूं और आप सुने, सिर्फ वैसा होगा तो मजा नहीं आएगा. आप भी बोलें तो आपको अच्छा लगेगा. यस. Club B is leaders, whereas Club B is followers. Great. That's why you want to be a Club A. Yeah, they want to be a leader. Rather than the great, great, great. Yeah, and Chatura, why you want to join this Club A? The same reason as they said, Shivani Venkat, and I think that Yeah. They are our inspiration. Like many young children think that Club A, the people who belong in Club A, are the people we should be inspired by. And when I grow up, I want to be someone's inspiration. Wow, wonderful. Thank you. And there is Just Sai. So I would like to ask from Just Sai. So the reason behind why you want to be a member of Club V, in case you have a choice to join freely without paying anything, you can join A and B. Then why you want to join B, please? Hi, sir. My name is Shaista. You can call me Shaista. Shaista. Yes, sir. Oh, great. Actually, क्लब भी इसलिए क्योंकि मतलब मेरे को डर होता है, मतलब फेमस हुए तो मतलब हेटर्स रहते, सब रहते, तो मतलब मेरे को क्राउड पीपल नहीं पसंद. मेरे को क्राउड प्लेस या पीपल. बट क्लब बी में तो क्राउड ही क्राउड होगा. मतलब लाइक मैं अकेले रहती ना, ज्यादा किसी को मालूम नहीं होता ना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ. अच्छा, आपकी दुनिया अलग है. हाँ. चलिए, थैंक यू. थैंक्स फॉर योर इनपुट बेटा. सो इन विच स्टैंडर्ड यू आर? सर एक्चुअली मैं फाइनल ईयर में हूँ. अब मैं एग्जाम्स चल रहे मेरे. नहीं, फाइनल ईयर किसका बेटा? BCA, बैचलर ऑफ ए कंप्यूटर एकेडमी. ओह, ग्रेट, वंडरफुल. एंड सबा मैम ने एनरोल किया है आपको? शमीना जी, शमीना मैम ने. ओके. हाँ, मम्मा ने बोला था. ठीक है. चलिए, गुड. तो आप 2 बच्चे हैं आज हमारे पास, बाकी शायद पेरेंट्स हैं, तो यहाँ भी क्लब ए और बी हो गया. यस. तो चलिए, आप दोनों को इंटरेक्ट करना है और खूब इंटरेक्ट करना है. आप जितना इंटरेक्ट करोगे ना, आज यहाँ भीड़ में नहीं हो, आप 2 ही लोग हो बस, आप और चतुरा, और बाकी हम सब एक तरफ हैं. ठीक है. So it's me also, sir. Rafat is also there. Wonderful, Rafat. Okay, 3 लोग हो गए. Yes, Rafat, you are also in the standard 10 now? Yes, sir. 9th class. 9th class में हो. चलो,
आप चतुरा के साथ आपकी कॉम्बिनेशन बना। चलिए बहुत बढ़िया। तो रफत, कौन से क्लब में जाना चाहोगे आप? इन केस आई गिव यू द चॉइसेस टू जॉइन ए और Club बी। B, sir, crowded place. क्राउड वाले में। चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. Okay, let's move ahead. Club A and Club B on this planet, there are two clubs, one of successful people, two of struggling people. Club A has successful people, Club B has struggling people. Club A has around 10% only. Club B are 90% approx. And the Club A people have approximate 75% of financial and the resources of this planet. They have control over 75% resources of this planet, whereas these Club B people, they are approximately 90%, and they are just managing within 25% of the resources. Now you can see what fight they are feeling, how struggle is there in their life. Whereas the Club A people has a lot of resources, more than required things they have with them, and they are living their wonderful life. That is the fact, that is the research, that is the survey fact which I'm sharing with you. Now, every one of us in student life want to become, almost everyone want to become the member of Club A, means everyone wants to get success in life. Whether here these two students opted Club B just to remain far from crowd, that was their motive. But I would ask to both of them, so do you want to get success in your life? यस सर, सक्सेस तो चाहिए मेरे को, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम आगे बढ़े तो लोग आगे बढ़ने नहीं देते, और नेगेटिविटी इतनी मतलब लाइक इतना स्प्रेड करते हो ना कि अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे तो भी लाइक पीछे हट जाते 2 कदम। तो मेरा ये थिंकिंग है कि दूर रह के काम कर लेना, किसी के सामने नहीं आना। बट सक्सेस तो चाहिए ना। हाँ, सक्सेस तो चाहिए। तो आपको क्लब ए बना। जब आपको सक्सेस चाहिए तो क्लब ए बना। स्ट्रगलिंग हुआ, फाइटिंग हुआ, वो सब आपका क्लब बी में हुआ। तो अब आपको सक्सेस चाहिए, देन ऑब्वियसली यू वांट अ मेंबरशिप इन क्लब ए। आपको बहुत फाइट नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, आपको डिससेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं। देन कहाँ जाओगे? क्लब ए में। वो वहां नहीं मिलता। ऐसा ऐसा अभी सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो अभी आपको क्या है कि क्लब ए, हर बच्चे ने जब वो 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, कॉलेज स्टैंडर्ड में जब था, तो हर बच्चा, आपसे पहले जितने बच्चे देश में पढ़े हैं, दुनिया में पढ़े हैं, एवरीवन वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी आफ्टर दिस स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, a good job, a good career, a satisfied and happy life. That is the want of everyone. But what happens, so that is a sad part, that after college life, what they actually get, out of 100, 90 becomes the member of Club B. Only 10% people goes to Club A. So that is a big problem of this planet, and we do not consider it at the right time. What happens that the people and students who wanted to become a successful personality and they could not get that. So, and where this problem came in their life and how they should go back behind to the successful people. So that we are going to discuss the root cause of this. So please, you just understand and make a good comprehension of this, what happens actually in the lives. And the difference start from the school student life, school life only. From the
class 8th, 9th and 10th, these are critical points, critical classes wherein we should take the right decision, and rather it can be taken up to 12th class and in college also. But if you think right way during your 8th, 9th, 10th standard, then it would be good for you to shape your career, to make your career, to take right decisions so that you can place yourself in the club A of this planet. And this difference starts from here. How this difference starts? Student who go this way, means the way which is here, there are 4 options. One is, many people join their family business just for security, that there is a big competition in the market में बड़ा competition है, job नहीं मिलता है, employment नहीं मिलता, इसलिए हम अपना family business join कर लेते हैं, यही अपने अच्छा रहेगा, फादर का बिजनेस है, मदर का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है, वो ठीक रहेगा, और वो जुड़ जाते हैं। एक प्रॉब्लम है, ये क्लब बी के मेंबरशिप के लिए उनको ले जाता है इस तरफ, दैट इज वन चांस। सेकंड, गवर्नमेंट जॉब ले लो, एक बार जॉब मिली उसके बाद सारी जिंदगी अपने को सैलरी आती रहेगी, अपने को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, या तो पेरेंट्स ने कहा बेटे डॉक्टर बन, लॉयर बन, पायलट बन, आईएएस बन, एडमिनिस्ट्रेटर बन, ठीक है, फादर ने कहा, मदर ने कहा, ग्रैंडफादर ने कहा, ग्रैंड मदर ने कहा, रिलेटिव्स ने कहा, पीयर्स ने कहा, आर फ्रेंड्स ने कोई डिस्कस किया, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई माइंड पर ये इंप्रेशन आता है कि उन्होंने कहा इसलिए मुझे ये बनना है। एक ये तरीका है, जरूरी नहीं है कि उनकी बात मान के आप क्लब बी में चले जाओ, क्लब ए में भी जा सकते हैं, वो कहते इसीलिए हैं कि वो क्लब ए में जाएं, बट होता जनरली उल्टा है। मेजोरिटी में विद द पीपल, विद द स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, वो पेरेंट्स और ये जितनी सारी सलाह हैं उनको क्लब ए में शिफ्ट करने के लिए होती हैं, बट एक्चुअली रिजल्ट मेजोरिटी में उल्टा हो जाता है। तो ये चीजें हमें क्लब बी में पुश कर देती हैं। अब इनसे कैसे इनको सही तरीके से ट्रीट करके क्लब ए में जाना है, तो मेरा प्लीज जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, माय पर्पज इज नॉट टू से दैट whatever parents suggest and guide is not worth, actually that is worth, but very limited percentage is there. A major percentage is pushing to the students towards club B side, because parents generally whatever they suggest, so that is a different, and whatever is the requirement that is different, it happens in many of the cases. So what we should do and how we should do, let's discuss it. A history says that not a single student and not a single parent planned to fail. उनमें से किसी ने क्लब बी में जाने के लिए नहीं सोचा था, ना किसी बच्चे ने, ना किसी माँ बाप ने, बट हिस्ट्री सेज ज्यादातर बच्चे सफर करे हैं। आज जितने भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे या जो सक्सेस नहीं हो रहे, उन सब ने सोचा था, सब ने प्लान किया था सक्सेस होने का, किसी ने फेल होना प्लान नहीं किया। बट मेजोरिटी में लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, अनहैप्पी हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड वॉट एवर दे गॉट एंड अचीव्ड इन देयर लाइफ एंड करियर, जो मिला उससे वो खुश नहीं है, जबकि उन्होंने खूब अच्छी तरह कोशिश की थी और उन्होंने, किसी ने फेल होना नहीं चाहा था। आपकी तरह जैसे आप बच्चे यहाँ या आप पेरेंट्स अभी जो सोच रहे हो, वैसा उन्होंने भी सोचा था। व्हाट दे हैव थॉट टू बिकम सक्सेसफुल। एम आई राइट बेटा? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हर बच्चे ने सोचा होता है पढ़ने के टाइम पे, मुझे सक्सेसफुल बनना है, यस, मुझे बड़ा पैसा कमाना है। कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं मोटा पैसा कमाना है, लंबी कार लेके आनी है 4 छल्ले वाली, ठीक है। कई बच्चे मैंने सुना है वो 4 छल्ले वाली बोलते हैं, क्या नाम है उसका ब्रांड का? ऑडी। वाह, ग्रेट, थैंक यू। बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा बंगला होगा, मुझे तो अब्रॉड टूर पे जाना है, एंड मुझे मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होगी।
एक डिफरेंस क्रिएट करूंगा दुनिया में, कुछ अलग से करना है मुझे। बड़े अरमान होते हैं बच्चों के, कुछ सोचते हैं मैं दूसरों की खूब हेल्प करूंगा, मेरे पास पैसा होगा मैं लोगों की हेल्प करूंगा, नहीं होगा तो भी हेल्प करूंगा, और मेरी लाइफ मीनिंगफुल होगी, पर्पसफुल होगी, ऐसा सोचते हैं। और भी कुछ है आप बता सकते हो मुझे, यू कैन ऐड। मतलब हम भी खुश रहेंगे, फिर सामने वाले को भी खुश करेंगे, फिर हमारी जो सक्सेस रहती है वो सामने वाला भी खुश रहता, कि ये सोचते, लेकिन बाद में मालूम होता कि वो लोग तो दुश्मन निकलते हैं, माय आगे गॉड। बढ़ने नहीं देते। अच्छा। एक्चुअली सर मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे सर। मैं ना मतलब 8th में 10th में ये सोचती थी कि मस्त कमाएंगे, सेटल होंगे, मस्त कार्स, मतलब स्पोर्ट्स कार्स, घूमेंगे फिरेंगे, ये था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही, मतलब लाइक लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस करे तो उससे मतलब समझ में आया, कुछ चीज पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ता। ओ माय गॉड, आपने तो बड़ा एक्सपीरियंस किया बेटा छोटी सी लाइफ में। चलो, चतुरा को हंसी आई, देखा जिंदगी ऐसे जाने वाली है, नहीं बड़ी अच्छी तरह जाने वाली है, डोंट वरी। आपने भी कुछ नहीं खोया बेटा, जो खोया ना उसने बड़ी लर्निंग दी है आपको, अब आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो और किसी और भी बच्चे ऐड कर सकते हो कुछ आप, आपको लगता हो आपका कुछ अलग है, डिफरेंट है, ये जो 6 डिब्बे में मैंने लिखा हुआ है, यू थिंक लिटिल डिफरेंटली। नहीं, आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ द थॉट्स कवर कर दिए हैं जो लाइक मेरे एज के लोग सोचते हैं वो। अब Yes, sir. वो नहीं किया, मेरी मम्मी को बड़ा खुश रखूंगी, मेरी मम्मी ने बड़ी मेहनत की है, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, उनको इतना पैसा कमा के दूंगी, वाह उनको बैठ के बस फिर काम करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। मेरी फैमिली बिल्कुल सेटल्ड होगी, काम नहीं करने देना मुझे पेरेंट्स को, जब मेरे पास अच्छा पैसा हो जाएगा तो मुझे काम नहीं करने देना, उनको जो बस ये तकलीफ है। सोचते हैं कि कमाओ और दे दो, बस जो भी कमाएंगे वो नहीं दे देंगे, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। ओह वो वैसे ही ग्रेट। सोचते हैं ज्यादातर। चलिए, तो हम सब ऐसा सोचते हैं, बट एक्चुअली होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, वो हम नहीं कर पाते। हम में से ज्यादातर लोग आगे बढ़कर दुखी होते हैं, और बहुत कम लोग हैं सुखी होते हैं। जो सुखी होते हैं वो उनके पास उतने रिसोर्सेज जरूरी नहीं हो, बट वो सुखी होते हैं। तो आज जितने लोग इस सेशन में हैं, मैं आज आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि आप कैसे सुखी रह सकते हैं सारी लाइफ, और स्ट्रगल वाले ग्रुप से आप जो लाइफ को हैप्पीनेस के साथ और जॉयफुली जी सकते हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, लाइफ में अच्छी लाइफ गुजारने के लिए क्या सबसे ज्यादा इसेंशियल है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ? एजुकेशन। ओके, मे बी, यस। मतलब सक्सेसफुल होने के लिए, राइट? नहीं, लाइफ को जस्ट अच्छा जीने के लिए। सबसे बढ़िया लाइफ मेरी जीऊं, उसके लिए मुझे क्या की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 जो भी कुछ बता सको आप। पैसा, I think मनी। इनफ मनी, इनफ मनी। इनफ मनी, और उस खुद इनफ। को बहुत अच्छे से जानना। यस, और भी बाकी सारे जो बड़े लोग हैं ना, पेरेंट्स हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कम ऑन। Parents? First thing is they should self-realization is more important. What is our goal in our life, and for what we are living this life for, that is more important. And then afterwards, money come in. थैंक यू। यस, बाकी सब लोग भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कुछ तो ऐड कर दो। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी मस्त हो, पूरी लाइफ मजे से गुजरे, तो क्या चाहिए आपको? Sukh suvidha. सुख सुविधाएं, यस ग्रेट। अच्छा, बाकी सब लोगों को कुछ नहीं चाहिए? We want a good friend circle, then a mentor in a life to guide in a life purpose. या ग्रेट, यस। बाकी सब भी माइक खोल लें, ये अपना घूंघट खोलो प्लीज, कुछ इंटरेक्ट करें, इस क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं। कम ऑन एवरीवन, अगर भगवान ने पिटारा खोल दिया, अल्लादीन ने चिराग घिस दिया, तो क्या चाहिए आपको जिंदगी को सबसे बढ़िया बनाने के लिए? व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट फॉर यू? पीस ऑफ माइंड सर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। Happiness. किसने बोला ये हैप्पीनेस? मैंने, सुजाता। सुजाता जी, बस आपने बाजी मार ली। अगर मेरे हाथ में अभी ना वो 7 करोड़ वाला होता तो अभी आपको चेक साइन कर देता। अरे वाह, दे दीजिए, मुझे जरूरत है।
चलो चलो, आपको तो हैप्पीनेस की जरूरत है मैम, पैसे की नहीं। अब दो बात नहीं Yeah, करते। that's true. यस, That's true. How much ever we earn, there should be happiness behind it. But चलिए अब हम बात करते हैं एक्चुअली जितना पैसा आता है। कोविड में जब कोविड पीक पे था, लोगों के पास बहुत पैसा था, बट उनकी सांस थम रही थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो वो पैसा जो उन्होंने इतना इकट्ठा किया था, क्या आप समझते हैं वो उनको वर्थ दे रहा था? नो। नहीं, No. नहीं। जिस टाइम पे ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए था, फेफड़ों को ऑक्सीजन चाहिए थी, पैसा काम नहीं आ रहा था। सो पैसा करता क्या है? पैसे से हम अपने लिए कंफर्ट्स, लेजर्स, लग्जरीज खरीदते हैं। व्हाई? Yes. टू बिकम हैप्पी। हमारी जिंदगी में कोई कमी ना रहे, कमियां पूरी करके एंजॉय करने के लिए, जॉयफुल रहने के लिए हम पैसा यूज करते हैं। पैसा हमें इसलिए चाहिए, हमारी जरूरतें पूरी हों और हम जिंदगी को खुशी से जी सकें, खुशी से जी सकें। खाना इसलिए चाहिए कि खाना हो तो हम खाना खाकर हम स्ट्रांग रहें, हेल्दी रहें, खुशी से जी सकें, बीमारियां ना आए। रिलेटिव्स इसलिए चाहिए क्योंकि दिखाएंगे किसको कि हम खुश हैं, लोगों के साथ हम खुशी से जी सकें। हमें गाड़ी किस लिए चाहिए? ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और हमारे पास कहीं भी जाने के लिए एक्सेस हो, हमारे पास कहीं भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, वापस आएंगे तो खुशी होगी, इसलिए गाड़ी चाहिए। बैंक बैलेंस क्यों चाहिए? कि जब भी जरूरत पड़े पूरी हो जाए, इसलिए मुझे बैंक बैलेंस चाहिए। तो मुझे जरूरतें पूरी होती हैं तो मुझे क्या मिलता है? खुशी। अच्छा, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, आप बताएंगे प्लीज, आपको भूख लगी है और आपके पास 2 रोटी हैं, और जैसे ही आप लेके बैठे, आपका बच्चा आया और उसने कहा मम्मी भूख लगी है, और तो आप क्या करेंगे? उससे पहले खिलाएंगे, अच्छा, बच्चे को पहले खिलाएंगे। बच्चे को देने से आपको क्या मिला? मतलब बच्चे का पेट भर गया तो एक माँ को सेटिस्फेक्शन हो जाता है। माँ को खुशी मिली, रादर हाँ, उनके खुशी पेट मिली, में, हाँ। उनके पेट में भूख थी, हाँ, बट भूख थी, लेकिन उन्होंने हाँ, भूख, उस समय उन्होंने क्या डिसीजन लिया? उस भूख से ज्यादा उनको तसल्ली हुई, उनको बड़ी खुशी मिली, मेरे बच्चे का पेट भर गया। हाँ, तो सही। आपको उस टाइम पे देखना, जब आपको भूख थी उस टाइम पे भी आपको जरूरत थी, यानी भूख से ज्यादा भी कुछ ऐसी चीज थी जिसने आपको हैप्पीनेस दी और आप भूख को भूल गए। और उसके बाद अगर आपको खाना नहीं मिला तो भी आप काम करते रह सकते हो, बिकॉज आपने वो हैप्पीनेस की डोज ले ली। तो हमारी लाइफ का जो सबसे की रिक्वायरमेंट है, दैट इज हैप्पीनेस। एंड सिंस चाइल्डहुड till our last breath on this planet, we always seek happiness, 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 happiness. So the career, study, education, money, car, bungalow, relatives, networking, everything just is for our happiness. The motive is for our happiness. Happiness, satisfaction, happiness, satisfaction, happiness, satisfaction. We are growing, that is for our happiness. Everything just stop at the destination point of happiness. तो हमें क्या चाहिए? जिंदगी में खुशी चाहिए। हर आदमी को जिंदगी में खुशी चाहिए होती है। बच्चा सक्सेस होगा तो माँ बाप खुश होंगे, बच्चा सक्सेस होगा तो बच्चा खुश होगा, और अगर वो स्ट्रगलिंग रहा तो ना माँ बाप खुश होंगे ना बच्चा खुश होगा। मैंने देखा है जिंदगी में बहुत सारे पैसे हैं लोगों के पास, बट दे आर नॉट हैप्पी। सो आई डू नॉट कॉल देम सक्सेस। आप कह सकते हैं क्या उसे सक्सेस जो खुश नहीं है और रिसोर्सेज हैं? नो। चलिए, अब ये बात तो हो गई कि हम सब बच्चों को, जितने यहाँ हैं, उनको चाहिए हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस मिलती है पैसे से, हैप्पीनेस मिलती है सक्सेस से, हैप्पीनेस मिलती है ग्रोथ से। तो अगर ग्रोथ, राइट ग्रोथ हो तो हैप्पीनेस मिलेगी, अगर गलत ग्रोथ हो तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। होता क्या है, जितने भी स्ट्रगलिंग पीपल हैं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब्स में जब आप जाते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं, और उनके पास खूब पैसा है, रिसोर्सेज हैं, बट उनको पूछो क्या हाल है तो क्या कहेंगे? कट रही है, बड़ा बुरा हाल है। मतलब दे हैव एडिक्वेट थिंग्स विद देम, बट दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। व्हाई? बिकॉज वॉट एवर दे हैव, that was not their want.
and what was their want that they do not have. जो मिला उसे वो चाहते नहीं थे, जो वो चाहते हैं वो उनको, कौन कंप्लीट करेगा सेंटेंस? नहीं मिला। मिला नहीं, जो मिला नहीं इसलिए वो दुखी हैं। जैसे अभी किसी बच्चे ने, रफात ने या किसने अभी शेयर किया था कि मेरे ड्रीम बहुत थे पर लगा सब दुश्मन बैठे हैं। मतलब छोटी सी लाइफ में उन्होंने 8th में ड्रीम देखा था, अभी तक जब ड्रीम की तरफ बढ़े तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अब उनको लगा बस जिंदगी में भीड़ से दूर रहो। जो चाहते हैं वो नहीं मिला तो फेल, जो चाहते हैं वो मिल गया तो पास, जो मिल गया उसे नहीं चाहते थे तो सेटिस्फेक्शन नहीं आता, हैप्पीनेस नहीं आएगी। तो करियर डिसाइड करने के लिए, जब भी हम करियर डिसाइड करें तो व्हाट हैपेंस इन आवर करियर, वी वर्क एवरी डे। हम हर दिन अपने करियर में कुछ ना कुछ घंटे काम करते हैं, और जब कुछ घंटे हम जिस काम को करते हैं उसे बिना मन के करेंगे, विदाउट इंटरेस्ट करेंगे, तो हमें सक्सेस आ नहीं सकती, हैप्पीनेस रह नहीं सकती। हमें हैप्पीनेस और सक्सेस जब चाहिए तो हमें उस पर काम में खुश रहना पड़ेगा, और काम अगर पसंद का हो तो ही तो खुश रहेंगे। मम्मी ने अगर डांट के कहा चल बर्तन धो, तो बर्तन में साबुन लगा ही रह जाएगा, आप मन से बर्तन नहीं धोएंगे। बाय द वे गलती से कह भी दिया तो माफ करना मुझे, ठीक है? कहीं रात को आज जाके ये काम हो जाए, बोले सर ने कहा था चलो कर दो, आज सर ने गड़बड़ करा दी। तो अगर कोई काम आप, जैसे कहते हैं ना घर में, जैसे ही बच्चा खुश होके कुछ करता हुआ दिखाई दे, अच्छा ये काम कर रहे, पढ़ते तो हो नहीं, उठाओ किताब बैठ जाओ, वो जैसे ही किताब उठा के बैठ तो जाएंगे, बट डू यू थिंक कि क्या वो मजे से पढ़ लेंगे? कौन बताएगा बच्चा मुझे? नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको फोर्स किया है पढ़ने। माय गॉड, और वो इतना जॉयफुल मोड में था और ये सहन नहीं हुआ, बोला अच्छा मैं तो यहाँ पिस रही हूँ और तुम मोबाइल पर कुछ देख रहे हो, चलो उठाओ किताब और पढ़ो। जैसे ये कहा, मदर ने कहा अच्छे के लिए था कि बेटे मेहनत कर लो, कंपटीशन बहुत है, बट बच्चे का वो जो मन खुशी में था, अब वो किताब पे पहुंच गया। अब पहले तो वो माँ, और अब वो किताब उसको कैसी दिखाई दे रही होगी, बोला ये किताब नहीं होती तो इतना मस्त होता मैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेमन जो काम करेंगे उसमें सक्सेस नहीं मिलती। यही एक रीजन है बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उन्हें फोर्स ना किया जाए पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई हो, इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ें। तो हम क्या करेंगे कि करियर को डिसाइड करने का बेटर तरीका ये है कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में 90% लोगों को वो करियर मिलता है जिसे 10% लोग छोड़ देते हैं, और वो उनका काम पसंद का नहीं होता, पसंद का काम उनको मिलता नहीं, और जो मिलता है वो उनको पसंद नहीं, बट उनको अपनी लिविंग्स को चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो वो बेमन वाला काम उनको करना पड़ता है, एंड एवरी डे उनको वो 8 घंटे करना पड़ता है। तो हर दिन जब बेपसंद का काम करते हैं तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल फील होता है, और उनको खुशी नहीं होती, उनको मजा नहीं आता, वो जॉयफुल फील नहीं करते तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो 40-45 के होते होते किसी न किसी एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो अपना करियर ऐसे शेप करेंगे जो उनकी पसंद का हो, जो उनके लिए राइट फिट हो, ताकि पूरी जिंदगी वो अपने काम को वर्शिप समझें, पूजा समझें, और मस्ती से उसको रोज करें। बड़े जॉयफुल मूड के साथ वो अपने वर्क प्लेस पर, काम पर शुरू हो रोज, और बड़ी मस्ती से उस काम को करें, तो जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। जो कुछ उसको उनमें मिलेगा उनको हैप्पीनेस फील होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस यस सर। चलिए, तो अब ये कैसे आपको जॉयफुल काम आपकी जिंदगी में मिल सकता है, ये वाली प्रोग्रामिंग अब करते हैं। ये जॉयफुल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? ये 2 तरीके हैं बेटे। हमारी कंट्री में अब तक बहुत पिछड़े हैं हम इस चीज में कि हम एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते, जबकि पढ़ाई के साथ साथ हमें पेरेंटल गाइडेंस और टीचर गाइडेंस के साथ साथ एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए होता है करियर शेप करने के लिए।
और वो हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते। ये आज की जरूरत है। आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना कोशिश कर रही है। पूरा नॉर्थ इंडिया तो मेरे पास है, करीब 10-12 लाख बच्चों को मैं गाइडेंस दे रहा हूँ ऑनलाइन कि उनको कैसे करियर शेप करना चाहिए। 8-9 स्टेट्स में मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है उनका। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पूरी कंट्री में ये काम चल रहा है और मैं ये देखता हूं कि अब अगले कुछ वर्षों में हर बच्चे तक ये सर्विस पहुंच जाएगी जहां प्रोफेशनल गाइडेंस उनके पास होगा। तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को शेप करने के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस जरूर लेना है। प्रोफेशनल गाइडेंस हमें क्या करेगा, हमें ये 5 चीजें डिसाइड कराएगा। इसका एक पिक ले सकते हो आप, अदरवाइज ये सेशन तो रिकॉर्ड हो रहा है। इन केस यू वांट टू टेक पिक ऑफ दिस, यू कैन टेक पिक ऑफ इट. In case you have a pen and paper, then you can note it down. So we just have to peep inside. सबसे पहले करियर मेरा है, जिंदगी मेरी है, सक्सेस मुझे पानी है, तो what we should do, हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा कि where is my strength, I should play on my strength. अगर मेरे अंदर ताकत है तो मैं लड़ाई लड़ सकती हूँ, लड़ सकता हूँ। अगर हमारे पास टूल्स होंगे, वेपन होंगे, तो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ सकेंगे। अगर वेपन हमारे पास नहीं है और हम बॉर्डर पर खड़े हो गए तो सामने वाला क्या करेगा, नमस्ते करेगा, हमें नहीं करेगा, क्या करेगा, ढिशक्यों कर देगा ना। Yes, तो sir. हमें क्या करना है कि इतना बड़ा कंपटीशन है, लाखों बच्चे हर साल पास हो रहे हैं। अब मैं उसमें से अगर ऐसे ही चला जाऊं कंपटीशन फाइट करने तो कैसे सक्सेस पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो टूल्स तैयार करने पड़ेंगे जिसमें मैं स्ट्रांग हूं। तो मुझे सबसे पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि वेयर आई एम स्ट्रांग। और ऊपर वाले ने धरती पर कोई बच्चा ऐसा नहीं भेजा जो अंदर से स्ट्रांग कम से कम एक चीज में ना हो। तो आप सबको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है yourself with the help of your friends, with the help of your parents, and in case you require, then you can take the professional help also. So you should play on your strength. कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे बोलते बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे लड़ते बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कुछ सोचते बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्ट बड़ी अच्छी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेलते बहुत अच्छे हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पर प्ले करोगे तो कंपटीशन में आगे ऑटोमेटिकली निकल जाओगे, आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बिना स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई आगे बढ़े तो सामने कंपटीशन वाले लोग आपको ढिशक्यों कर देंगे, क्योंकि उनमें से अगर कोई स्ट्रेंथ पर प्ले करके आगे आ गया तो आप उसको बीट नहीं कर पाओगे। अच्छा, मानते हो मेरी बात ये? Yes, sir. अगर किसी Yes, को, sir. अगर एक डिबेट कंपटीशन हुआ और एक बच्चा ऐसा है जो खूब बोलता है, एक टॉपिक पर उसकी बड़ी अच्छी पकड़ है और वो डिबेट में आ गया, और अभी यहाँ कौन बैठा था, दुनिया से दूर रहना है, मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी किसी से, और आप उस डिबेट में पहुंच गए, तो क्या करने वाले हो, डिबेट जीत जाओगे आप? बताओ मुझे, डिबेट जीत जाओगे? शायद। ओ माय गॉड, चलो शायद तो निकला आपके मुंह से। एक बच्चा बहुत स्ट्रांग है डिबेट में, यानी उसकी तो स्ट्रेंथ ही है कि बस उसको टॉपिक दे दो, उसका वॉल्यूम ऑन कर दो और फिर वो रोकना मुश्किल होता है। एक है जिसको बोलना अच्छा नहीं लगता, जिसको बोलना अच्छा नहीं लगता वो डिबेट नहीं जीत पाएगा। अगर किसी को किसी बच्ची को टीचर बना दिया, किसी ने कहा आप टीचर बन जाओ, अच्छा जॉब है स्कूल में पढ़ा के लौटना, और उसको बोलना पसंद नहीं है, तो स्कूल में क्लास में जाके जब उन्होंने बोलने की कोशिश की, बोलना पसंद नहीं था, अब कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं सर। हाँ, बच्चे कहेंगे मैम कुछ बोलो, तो वो कहेंगे हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। उनको बोलना अच्छा नहीं लगता। तो जिनको बोलना अच्छा नहीं लगता वो टीचर नहीं बन सकता। टीचर बन सकता, एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। अच्छा टीचर भी बन गया तो खुश टीचर नहीं बनेगा। गॉट माई पॉइंट? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पीप इनसाइड वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग, you have to identify that strength, and then you have to play according to that strength. So I'll make you learn how you can identify that. Then
identify your strength and your interest, your personality trait, what is strong with you. जो कुछ आपके पास अच्छा है इकट्ठा करो और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ो. फिर आप देखो मेरी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, मेरी सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ कि मेरे लिए कौन से करियर पाथवेज अच्छे बनते हैं. फिर उन करियर पाथवे में आप रियलिस्टिक गोल बनाओ. अगर आप बोलते अच्छा हो और आपकी फैमिली में एजुकेशनल बैकग्राउंड है और अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छी टीचर, एक अच्छी लेक्चरर, अच्छी प्रोफेसर बन सकती हूँ, एक अच्छी एजुकेशनिस्ट बन सकती हूँ, देन मेक अ रियलिस्टिक गोल दैट आई शुड बी अ गुड टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, एजुकेटर. वो आपका रियलिस्टिक गोल बना. और फिर रियलिस्टिक गोल बनाने के लिए व्हाट यू वुड रिक्वायर, मुझे अगर अच्छा एजुकेटर बनना है देन आई विल डू पीएचडी. तो मुझे डॉक्टरेट करनी चाहिए. डॉक्टरेट किस टॉपिक में करनी चाहिए, ये सब्जेक्ट एसएसटी मेरा अच्छा है तो मुझे एसएसटी में डॉक्टरेट करनी है. मुझे एसएसटी में डॉक्टरेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टरेट के लिए मुझे मास्टर्स करना पड़ेगा. मास्टर्स से पहले मुझे ग्रेजुएट करना पड़ेगा. ग्रेजुएट से पहले मुझे 12th करनी पड़ेगी. अब मुझे 12th किस सब्जेक्ट में करनी है, देखो रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है. सबसे पहले मैंने क्या किया, स्ट्रेंथ से शुरू हुए और सीधे 11th में सब्जेक्ट क्या लेना है यहां तक आ गए. स्ट्रेंथ से शुरू हुए, पर्सनैलिटी को एक्सेस किया, इंटरेस्ट को एक्सेस किया, फैमिली कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने गोल बनाया. गोल के लिए पाथवे डिजाइन किया, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग की कि उसके लिए मुझे एंट्री रूट क्या होगा, उस प्रोफेशन में, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एंट्री रूट क्या होगा, उसके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और मुझे कोर्स कौन सा स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करने हैं. एक बार ये पाथवे डिजाइन हो गया, फिर बल्ले बल्ले तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ और आप अपनी लाइफ की गाड़ी को एंजॉयफुली या जॉयफुली आप आगे लेते जाओगे. और हर एक स्टेप पर आपको खुशी होगी बिकॉज आपने चीजें पहले डिसाइड कर ली हैं. अब तो सिर्फ उनको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो. कंफ्यूजन के लिए आपके कोई जगह नहीं बची है. उस चीज को आपने प्रोफेशनली वेरीफाई करा लिया, पेरेंट्स से बैटिंग करा ली और रिलेटिव से डिस्कस कर लिया, टीचर के साथ बात हो गई, डन. उसके बाद कोई कंफ्यूजन बचेगा क्या चतुरा? नो सर. नो. तो आज करें आपके लिए एक्सरसाइज छोटी सी, यस सबके सर. लिए. चलिए ग्रेट. बस. अच्छा तो अब ये 5 स्टेप को कैसे करेंगे और ये कैसे आगे होता है, चलिए. दैट इज 5-step process and the first process is process 1, how to access yourself. अब बड़ा चैलेंज है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है. अच्छा बताओ मुझे, आप तीनों बच्चे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और बड़े जो लोग बैठे हैं वो भी बता सकते हैं. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ प्लीज. अपनी एक एक स्ट्रेंथ प्लीज रखेंगे चैट बॉक्स में. ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं है. कोई स्ट्रेंथ हो आपकी. अच्छा कैसे पता चलेगा? फ्रेंड्स कहते हैं तू बोलती बहुत अच्छी है. अच्छा, पेरेंट्स कहते हैं लड़ती बहुत अच्छी है. दैट इज योर स्ट्रेंथ. बात बहुत अच्छी करते हैं. यस. क्या स्ट्रेंथ है आपकी? आप आज तक आपको अगर कोई स्ट्रेंथ समझ में आई है तो प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. Sincerity. हेल्पिंग नेचर, जस्ट शाय. वाह. आप अपना रीनेम कर लेंगे बेटा, आप नाम चेंज करेंगे तो यहाँ हमें हेल्प होगी. आपकी हेल्पिंग नेचर है. ग्रेट. सो यू आर अ सोशल पर्सन, कंट्रीब्यूटर. ग्रेट. बाकी सबको समझ में आया कुछ? बड़े लोग भी लिख सकते हैं. लाइक हमारी स्किल्स या हमारी कोई पर्सनालिटी का ट्रेड जो लोगों को पसंद कुछ हो. भी आपको समझ में आए, जो लगता हो आपका स्ट्रॉन्ग है आपके पास, जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको लगता है कुछ डिफरेंट है आपकी सराउंडिंग से आपके पास, वो लिखो. I can really talk English well. It is the Yes. one. Okay, then why are you waiting just to type it here? अच्छी चीज है तो उसमें कंफ्यूजन क्यों? Come on. Sincerity, शिवानी ने. Yes, wonderful. मेरे पास लाइक लिखने के मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ और बोलती भी अच्छा हूँ. लाइक अगर मुझे कोई टॉपिक दिया जाए, आपने जो बोला एग्जाम्पल, मैं ग्रुप डिस्कशन या एलोक्यूशन अच्छा करती हूँ. और हाँ वही
तो मैं आप और मैं रिस्पेक्टफुल, अगर पर्सनालिटी का देखा जाए तो मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स बोलते कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो आप करते हो उसके लिए मेरे पास एक सिंगल वर्ड है, दैट इज एक्सप्रेशन। यू एक्सप्रेस वेल whatever is in your mind, so you have no hesitation, you feel comfortable just expressing this with others. Is that okay? So you are Yes, sir. expressive, yes, and you are very respectful. आप लोगों को बहुत इज्जत से बात करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। रफात ने लिखा, आई कैन टॉक इंग्लिश वेल। वंडरफुल रफात, ग्रेट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब बाकी सब रह गए, आप सब भी लिख सकते हो। प्लीज प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। हम बड़े भी लिख सकते हैं इसमें, बड़े भी लिख सकते हैं, क्या बुराई है? कम ऑन। चलिए, अभी वो शर्मा रहे हैं, बोला बच्चों के सामने कैसे लिखे, हम कहाँ स्ट्रॉन्ग है। ओके ठीक है, आप मुझे पर्सनली लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ हैं जो हमारी लाइफ में करियर बनाने में हमें हेल्प करती हैं। तो मैं आप बता रहा हूं, और प्लीज नोट करना इनको, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस इन केस यू हैव अ पेन एंड पेपर, so you can note it down. So the first thing what we require to identify, so there are three things we can identify in these three areas. One is strength, that is called aptitude also, and the second is personality traits, and the third is interest. And these three things are required to decide our career pathway to get our desired success in our life. ये तीन चीजें हमें जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए काम आती हैं। ये तीन वेपन हैं, तीन हथियार हैं, यही हमारे पास ताकत है, इन्हीं के बल पर पूरी दुनिया जीतनी होती है हमें अपने लिए। तो ये एप्टीट्यूड मींस वॉट एवर गॉड हैज गिवन टू यू। नोट कर लिया, बस तीन नोट कर लो, एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी। अब समझ लो इसको। नाउ what is aptitude? Aptitude is whatever God has given to us, whatever we got as heredity, what came in our DNA. ठीक है? And the personality, how we are groomed, how we are groomed in our family, how we are groomed in our school, how we are groomed in our environment. हम क्या हमने डेवलप किया अपने अंदर, that. And the third thing is, what do you like? Your likings. So your likings also impact your career and happiness. So you feel happy with the things you like, and you do not feel happy with the things you do not like. And the personality means how you looks and how you think, how you looks and how you think. So that matters for your career. How it matters, I am going to tell you. And the third thing, your strengths. So these three things are very important. So know your strength, know your aptitude, know your high potential area, and what are these aptitudes, what are these strengths. Just let's understand. If you are good at numeric calculations, so who is here who think that I'm good at numeric calculations? You think that you are good than your peers. आप अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के बैच के जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर आप उनमें से लीड करते हो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में, कौन है यहाँ? है कोई? अगर अच्छा मूड होगा तो हाँ। अच्छा मूड होगा तो हाँ, लाइक पढ़ाई का मूड होगा तो बहुत अच्छा होता है, फास्ट होता है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वगैरह, जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर मूड नहीं होगा पढ़ाई का तो बिल्कुल नहीं होता। देखना तक भी मन नहीं करेगा। ओह ग्रेट। चलिए, अगर कोई बच्चा न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में अच्छा है, इट मींस उस बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग पनप रही है। मैथमेटिक्स टीचर्स एक्चुअली व्हाट? Mathematics is a subject which always puts us in a problem. थोड़ी सी बात बताने के बाद हमें प्रॉब्लम में टिकाता है लाके, थोड़े एग्जाम्पल्स और फॉर्मूले सिखाने के बाद वो सीधे हमें एक्सरसाइज देता है। यही बात है।
और हर Sir. एक्सरसाइज के Yes. एक प्रॉब्लम में समथिंग इज मिसिंग विच इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। लाइफ भी हमें वैसे ही रखती है, हमें कुछ देती है और उसके बेसिस पे कुछ अर्न करने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ हमें चांस देती है। तो मैथमेटिक्स और लाइफ दोनों पैरेलल हैं। अगर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह कोई सॉल्व करना समझ जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मीन अननोन टू नोन ट्रेस आउट फाइंड आउट करना सीख जाता है, या एक बच्चे का इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है लाइफ में। ठीक है, तो कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल में अगर आप अच्छे हो, अगर ग्रुप को लीड करते हो, तो आप समझना लाइफ के एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। और आप लाइफ में कौन से करियर्स में ज्यादा ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस पाएंगे। यू कैन बी अ गुड मैथमेटिशियन, यू कैन बी अ गुड स्टैटिस्टिशियन, you can join finance, you can join banking, you can join actuaries. Actuaries means insurance science. So these all areas are based upon problem solving related to mathematics, and in case somebody is good at mathematics problem solving, he or she can join, he or she can shape, he or she can decide a goal to become mathematician, statistician, finance minister, finance manager, and bank manager, banking, insurance in charge, insurance officer, insurance analyst, and blah blah blah. In these particular areas you can shape your career. Is that clear to you? यहाँ पता चला सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, तो हम इन एरियाज में अपना करियर शेप करें। अगर हमें लगता है मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा मैं थोड़ा सा बैकफुट पे हूं, तो कोई बुराई नहीं है, आप अपनी दूसरी स्ट्रेंथ को तलाशो, क्योंकि ऊपर वाले ने, ऑलमाइटी गॉड ने आपको एक अच्छी चीज जरूर दे रखी है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट। तो आपको बिल्कुल मन में रखने की बात नहीं है कि मेरा मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग नहीं है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेरी न्यूमेरिक कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, तो ये एरियाज आपको बचाने चाहिए। तो फिर क्या करना है? इन केस यू हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मशीन्स एंड लाइक वर्किंग विद देम बेटर देन अदर्स। आपने देखा होगा कुछ बच्चे फैमिली में ऐसे होते हैं, उनको हाथ लग जाए ना कोई टूल, कोई टॉय, तो और कोई मशीन छोटी सी, जब तक उसके सारे पहिए बाहर नहीं निकाल देते ना, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती, ये चलता कैसे है। देखा है ना, कुछ आपने घर में या कहीं आप जाते होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे देखे, वो जब तक कार के चारों पहिए निकाल के नहीं देख लेते ना चलती कैसे, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है ना। तो Yes, sir. अगर ये बचपन में ही पता चल जाता है, पेरेंट्स देख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि कोई छोटी मोटी मशीन जैसे साइकिल है, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दौड़ के जाते हैं, खुद ठीक करते हैं। बाइक में कोई प्रॉब्लम हुई, दौड़ के जाते हैं, खुद ठीक करते हैं। माता का गैस स्टोव अगर किचन में खराब हुआ, तो कुछ बच्चियां ऐसी हैं, वो लाएंगी, वो निकाल के स्क्रू ड्राइवर और वो प्लायर, और वो खुद ही कोशिश करती हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो मशीन्स को समझना, उनके साथ काम करना, कूलर ठीक करना, पंखा ठीक करना, मोबाइल फोन में कुछ प्रॉब्लम हुई उसको ठीक करना, ऐसी चीजें अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है मजा आता है ऐसा करके, देन मैकेनिकल एरिया एंड मशीन्स आर फॉर यू एंड यू आर फॉर मशीन्स, एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एबिलिटी। अगर आप में मैकेनिकल एबिलिटी है, तो आप क्या बन सकते हैं? इंजीनियर। You can be a good mechanic. You can be a pilot, because pilot plays with the machine, flying machine, and machine related careers. So in case you have mechanical influence in your mind, in case you have touch, you like to become with machines, you enjoy with machines, then you should think for mechanical side. You should think, you should make your career, and you can decide, you can take pathway for your career in in engineering regarding mechanics or machines, and you can be a pilot or flying machine or something else. So this is the second option. In case you have mechanical ability, then you can go for this.
And the third one is like Chatura, if you think you express well, you convince others well, and people listen you well, and they get convinced from your words and your style of communicating things. Whenever you express, people listen you. Whenever you express, your friends respect your words, then you have verbal ability, you have communicative ability, you have expressive ability. And such kind of people actually rock the show. They lead the people, and their destination can be becoming an anchor, a journalist, a writer, an author, a politician, a leader, a team leader, a manager, a public relation officer, a human resource officer, a teacher. A lot of careers are there where expression is required to communicate. Means expression is in focus, where you have to express something in well way. So who is going in anchoring, who is becoming a journalist, who express well? सिंपल सी बात है. चतुरा समझ में आया बच्चे? Yes, हेलो. sir. तो कौन Hello, बनेगा? sir. हाँ, पॉलिटिशियन कौन? अगर नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी तरह बोलना नहीं है, भाइयों और बहनों जैसे ही बोला और लोग धराशायी हो जाते हैं, मुरीद हो जाते हैं, बोला अभी कुछ धमाका होने वाला है. तो जो लोग अच्छा बोलते हैं, लोग उनको सुनते हैं और इंप्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, परसुएड होते हैं उनकी जो एक्सप्रेशन है उससे. इसका मतलब आपकी बात का जादू चलता है. और अगर आपकी बात का जादू चलता है, तो बात का जादू चलाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? जितने भी एंकर्स हैं जो टीवी चैनल्स पे आप देखते हो, वो अच्छा बोलते हैं, इसलिए उनको सेलेक्ट किया गया वहां, और उनको मजा आता है वो काम करके, उनको अच्छा लगता है. अगर आपकी एबिलिटी बर्बल है तो क्या बन सकते हो? एंकर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, ऑथर बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हो, गवर्नमेंट के पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हो, गवर्नमेंट के पीआरओ बन सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट के पीआरओ बन सकते हो. तो ये समझ में आगे बेटा? बर्बल क्लियर हो गया? जिनको बोलना अच्छा लगता है, जिनको लिखना भी, नॉट ओनली बोलना. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे जो बोलते बहुत अच्छा नहीं पर लिखते बड़ा अच्छा है, तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप कॉलमिनिस्ट बन सकते हो. गॉट माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. क्लियर है बच्चों? 3 एबिलिटी में से अब आपकी जो एबिलिटी हो उसको आइडेंटिफाई करते चलना. यस आपकी सर। जो एबिलिटी हो उसको आइडेंटिफाई करना. मैं 5 एबिलिटी बता रहा हूं, इसमें से कहीं ना कहीं आप जरूर आओगे. एंड द फोर्थ वन इज, इफ यू थिंक डीप, if you decide quick, and if people ask you for your advice, and if you manage well. Decide quick means whenever you open your wardrobe और आपकी वहां 3 ड्रेस रखी हैं और आप जल्दी से हाथ डाला और फट से एक निकाल लेते हो, मीन्स यू आर अ गुड डिसीजन मेकर. और अगर वहां खड़े होकर सोचते हो ये ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन अच्छी है, नहीं रेड पहननी है, नहीं येलो, अगर आपको ऐसा लगता है, इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड डिसीजन मेकर. आपको खाने के लिए अगर आपकी प्लेट में 3 ऑप्शन हैं और 3 में से अगर आपने सोचा ये, अच्छा मिठाई नहीं, मिठाई नहीं, फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड नहीं, आप अगर ये नहीं के चक्कर में हो तो समझना आप अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हो. आपको लगा जो आया फट से उसमें से एक डिसीजन लिया, तो आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो. इफ यू डिसाइड क्विक. जो लोग अच्छा डिसीजन लेते हैं, लोग उनको पूछते हैं. आपने देखा होगा फैमिली में भी जो डिसीजन अच्छा लेता है, लोग उसके पास बताओ ना मैं क्या करूं, मैं बीए करूं, बीएससी करूं, बीकॉम करूं, मैं कौन सा करूं, मैं कौन सा वाला टेस्ट दूं, मुझे बताओ. लोग पूछने आते हैं. वो किसको पूछने आते हैं? जिसका डिसीजन पावर स्ट्रांग है. इन केस योर डिसीजन पावर इज स्ट्रांग, you can rock the show, you can rock the world, you can be a manager. What manager do? He takes decision. What leader do? He or she takes decision. What a lawyer do? Takes decision. What a marketing professional do? Takes decision. And think well, and think entire perspective. Sales professional, entrepreneur, businessman, scientist, controller, manager, what actually they do. So their backbone
of working is mental reasoning ability, means their decisive power. In case your mental reasoning ability means to discriminate what is good, what is bad, and what you should do. In case you think that you can do it immediately, then you should go in any of the career of this family: manager, leader, lawyer, marketing professional, sales professional, entrepreneur, scientist, controller. Apart from that, there are student. इन चार में से किसी को कुछ एबिलिटी मिला अपना अपना? प्लीज लिखते जाओ मेरा एबिलिटी कौन सा है। बड़े भी लिख सकते हैं। कौन सा एबिलिटी है आपका? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। अभी 4 मिल गए हों तो लिखो, अदरवाइज मैं 5वीं बता रहा हूं फिर आपको। आपकी कोई स्ट्रेंथ इन 4 में मिली हो देन इट्स गुड। चतुरा का बरवल हो गया। व्हाट अबाउट अदर्स? Okay, I'm going to tell you the 5th one. Something, sometime I think 3 साइस्ता ने लिखा। चलो मैं 5th बता रहा हूं, इसमें से निकल सकता है। There is one more ability, that is if you think creative, new, out of box. If you like designing things, and if you like to work with shapes, figures, nature, landscape, art, canvas, sports, ground, adventure, mountains, roads, building. In case you like to work with these kind of things, then you have spatial, yani geographical, art, dimensional ability, art ability. In case you think you are creative mind, you think out of box, you think new, then you can be a good designer or architect or an engineer or a sculpture artist or film director, film artist, artist of any art, animator, pilot, meteorology officer or professional, environmental professional, cartographer, designer. A lot of careers are for you wherein you can play with your this ability, and this ability can place you there, and you can feel happy, contented, satisfied doing your work every day, every moment in this particular areas. Got my point बेटा? तीनों को पता चला? यस सर। Yes, sir. अगर इनमें से आपको लगता है कि मेरा कोई एरिया अगर आपको ये अच्छा है, जैसे आपको घूमना बड़ा पसंद है, आपको रूल्स कम पसंद है, आपको तो बस छोड़ दे कोई और घूमे पहाड़ों पर जाके, मतलब आपको ऐसा लगता है, तो आप क्रिएटिव माइंड है। ठीक है, आपको कुछ डिजाइनिंग, आपको कैनवास मिल जाए तो पेंट करना बड़ा अच्छा लगता है, आपको हमेशा कुछ नया करना अच्छा लगता है, तो आप क्रिएटिव हैं, और क्रिएटिव हैं तो आप इस तरफ जा सकते हैं। तो ये 5 एबिलिटीज एक बच्चे में, हर बच्चे में 5 नहीं होती, हर बच्चे में 4 नहीं होती, हर बच्चे में 1 भी होगी तो भी वो अपना करियर बहुत अच्छी तरह शेप कर सकता है अपनी एबिलिटी के बेसिस पे। तो आई थिंक क्लियर हो गया, और आप सबने लिख दिया। आर्ट एबिलिटी रफात में मिल गई, स्पेशियल संजीव कसर जी ने लिखा, क्रिएटिव एंड डिजाइनिंग शिवानी ने लिख दिया। ओ माय गॉड, ग्रेट। साइस्ता का आ गया एंड चतुरा का बरवल हो गया, तो ग्रेट। अब आपको एबिलिटी पता चल गई, एक पर्टिकुलर एरिया पता चल गया, पूरी भीड़ में से अब एक पाथवे पता चल गया कि मेरी बरवल एबिलिटी है तो मुझे वहां जाना है जहां मेरा बरवल काम आता हो, सो दैट आई फील कंटेंटेड। चतुरा को लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता होगा, जब आप कम्युनिकेट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता होगा। और जिनकी आर्ट एबिलिटी है, जब वो कुछ ड्रॉ करते होंगे तो ऐसा लगता होगा नहीं कुछ खाने को भी नहीं चाहिए, बस मजा आता है कुछ कैनवस पर कर। जिनको बाहर घूमना पसंद है, माउंटेन्स पे जाके उन्हें लगता है ना हो कुछ खाने को, पर बस यही घर हो अपना, यहीं बस जाए, बड़ा अच्छा हो। तो आपको वहां जाके अच्छी फीलिंग आती है। जब आप उस अच्छी फीलिंग के काम को रोज करोगे तो खुश रहोगे। तो आप अपना एरिया इस तरफ डिजाइन करो, इस तरफ डिसाइड करो। ये था एबिलिटी बेस्ड करियर। अब इसके साथ साथ एक और हमारा तरीका है, personality also help you and it also plays a role to make your career decision.
So what are those personality traits who are actually you should think for you? So that is if you think you are more practical. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब तक उसको हाथ से नहीं कर लेते तब तक याद नहीं होता, जब तक लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते तब तक पता नहीं चलता कि H2S क्या होती है, तब तक पता नहीं चलता कि H2O क्यों पानी को कहते हैं। जब तक प्रैक्टिकली नहीं कर लेते तब तक समझ में नहीं आता। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी वाले बच्चे हो जो खुद हाथ से करके आपको पसंद आता है काम, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, एक्चुअरीज, ये सारे एरियाज आपके लिए बेटर हैं, आप इधर जा सकते हो। बिकॉज यहाँ प्रैक्टिकली करना पड़ता है। फाइनेंस में रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करना होता है, सेल्स में प्रैक्टिकल करना है, मार्केटिंग में प्रैक्टिकल करना है, एक्चुअरीज में प्रैक्टिकल करना है। अगर आप इमेजिनेटिव हो, ख्यालों में, मीन्स आंखें बंद करके बस मैं इतना पैसा हो जाएगा, मेरे पास बंगला होगा, मेरी लाइफ ऐसे होगी, बड़े ड्रीम्स ज्यादा देखते हो आप। प्रैक्टिकल लोग ड्रीम्स कम देखते हैं, ड्रीम्स देखने वाले प्रैक्टिकल कम होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप इमेजिनेटिव हो तो ये कोई गलती नहीं है आपकी। आप अपना करियर कैसे डिसाइड करेंगे? आप आर्टिस्ट बनो, क्योंकि आर्टिस्ट क्या करता है, आर्ट को पहले माइंड में ड्रॉ करता है, तो उसको इमेजिनेटिव होना जरूरी है। फिल्म मेकर क्या करता है, पहले वो फिल्म उसके दिमाग में बनती है, फिर वो एक्चुअली कास्ट होती है। एक्टर क्या करता है, जो कुछ उसको डायलॉग डिलीवरी देनी है उसको पहले मगअप करता है, माइंड में उसको इमेजिनेट करता है। पोइट क्या करता है, रात को बैठ के वो इमेजिनेट करता है, राइटर इमेजिनेट करता है, साइंटिस्ट इमेजिनेट करता है। तो अगर आप इमेजिनेटिव हैं तो ये करियर्स आपके लिए फिट है, अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो ये करियर आपके लिए फिट है। आर यू एग्री विद मी? हेलो, Yes, sir. हंसी गायब हो गई आपकी, लगा कुछ सीरियस हो गया टॉपिक। हाँ, बट अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, यस sir. सर। यस। तो हमें अब ये देखना है कि मैं अगर काम करके मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, हर चीज को मैं कर लूं तब समझ में आती है, तो आप प्रैक्टिकल हो। अगर आपको बस आपको लगता है ख्यालों में ज्यादा रहते हो, सोच में ज्यादा रहते हो, नींद नहीं आती और ख्यालों में ही चले जाते हो, बहुत देर देर तक बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनते हैं, तो आप समझना आप इमेजिनेटिव ज्यादा हैं। तो आपका करियर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलना पसंद नहीं है, चुप रहना पसंद होता है। अब जिसको बोलना और चुप रहना पसंद है उसको अगर टीचर बना दें तो अपने साथ साथ उस क्लास में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनकी जिंदगी के साथ गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, sir. अगर उसको लॉयर बना दें तो कोर्ट में जाके जब अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो अगर लॉयर खड़े होकर कहे हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, तो आपका क्लाइंट तो केस हार जाएगा ना। हेलो। अगर Yes. पॉलिटिशियन बना दें और उनको स्टेज पे चढ़ा दें, बोल बेटा बोल, और बोलना पसंद नहीं है, तो क्या रैली में आए हुए लोगों को आप इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस कर पाओगे? नो। तो अगर No, आप इंट्रोवर्ट हैं, क्वाइट हैं, तो आपके लिए कौन से करियर अच्छे हैं? ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये गलती नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर मुझे बोलना ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं राइटर बनूं, मैं रिसर्चर बनूं। रिसर्चर एक कोने में बैठ के पूरा दिन गुजार सकता है, बरसों तक रिसर्च कर सकता है बिना किसी को ज्यादा बोले। इनको कम बोलना पड़ता है, पेंटर को कम बोलना पड़ता है, आर्टिस्ट जो ड्राइंग आर्टिस्ट है, अकाउंटेंट है, उसको कम बोलना पड़ता है, बैकएंड में जो लोग काम करते हैं उनको कम बोलना पड़ता है। और जिनको जिनको ज्यादा बोलना पसंद है, जैसे कुछ बच्चे आपने देखा होगा ना, घर में बहुत बोलते हैं, अगर उनको थोड़ी देर डांट भी पड़ जाए ना तो थोड़ी देर ही फर्क रहता है, उसके बाद उनका वॉल्यूम फिर शुरू। और कुछ ऐसे हैं जिनको खूब बोलने को कहा जाए तब भी नहीं बोलते। तो जो बहुत बोलते हैं वो बड़े सोशल होते हैं, उनका मन नहीं लगता अकेले में, उनको अकेले कमरे में बिठा दो तो वो बाल पकड़ लेते हैं अपने, नहीं होता उनसे, उनको लोग चाहिए बात करने के लिए। तो जिन लोगों को लोग चाहिए बात करने के लिए वो टीचर बने, लॉयर बने, मार्केटिंग प्रोफेशनल बने, सेल्स प्रोफेशनल बने, पॉलिटिशियन बने, एंड पब्लिक रिलेशंस में जाएं, मैनेजमेंट में जाएं, जहां उनको एक्सप्रेशन की आज़ादी हो, जहां लोग हों, पब्लिक प्लेस हो, जहां लोग नेटवर्क होते हों, तो वो उन करियर्स में ज्यादा सक्सेस होंगे।
अब इसके अलावा दोनों चीजें हो गई, पर्सनैलिटी भी पता चल गई, हमारी स्ट्रेंथ भी पता चल गई, और तीसरी चीज है, पर्सनैलिटी तो अच्छी है कि मेरी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी एंड आई थिंक गुड and I can join army, I can join air force, I can join navy, military services, but I don't like to go in military services. ऐसा भी तो हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी भी है और एबिलिटी है, पर आपको जाना पसंद नहीं हो, ये भी तो हो सकता है। जैसे घर वाले कहते हैं करेले खा लो, आपको पता है करेला खाना हेल्थ के लिए अच्छा यस सर। होता है, अच्छा होता है ना, यस सर। बट करेले खाने का मन नहीं कर नहीं होता। नहीं होता ना। यानी पता है करेले खाने से हेल्थ अच्छी होगी, पर नहीं, मेरी लाइकिंग नहीं है, मन नहीं है। तो ऐसा करियर में भी तो हो सकता है कि मेरे पास एबिलिटी तो है पर मन नहीं है। तो मन के अकॉर्डिंग भी करियर होना बहुत जरूरी है। अब मन के अकॉर्डिंग करियर कैसा होता है? इफ यू आर हार्ड वर्किंग बाय योर चॉइस, यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, यू वर्क विद योर हैंड्स, अगर आपको हाथ से काम करना पसंद है तो ही माता के साथ आप किचन में हेल्प करवाओगे। अगर आपको हाथ से काम करना पसंद नहीं है तो माँ ने किचन में आकर अगर वेजिटेबल चॉपिंग के लिए कहा तो नहीं करोगे, और करोगे तो वो चॉपिंग कुछ आड़ी तिरछी ही होगी। इज दैट राइट? मैं ठीक हूं? यस सर। हाँ, अगर आपको हाथ से काम करना पसंद है, you can be an engineer, you can be an architect, you can be a pilot, you can be a military officer, you can be a forester, you can be a military officer, उन सबको हाथ से काम करना पड़ता है। पायलट ये थोड़ी कह देगा उसको, क्रू मेंबर को, ये ले भाई मैं सो जाता हूं तू जहाज उड़ा ले। इज दैट ओके? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। उसको काम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रादर ही इज ऑफिसर। तो अगर आपको खुद से हाथ से काम करना पसंद है, आपका मन लगता है, देन यू गो इन सच काइंड ऑफ जॉब्स। एंड इफ यू थिंक दैट मुझे कुछ नहीं करना, लोगों से कराना है, जैसे मॉनिटर हुआ, जैसे लीडर हुआ, टीम लीडर हुआ, तो वो खुद नहीं करते, वो क्या करते हैं, दूसरों से कराते हैं, और वो भी एक एबिलिटी है। अगर आपको दूसरों से काम कराना अच्छा लगता है, देन you can be a manager, you can be a team leader, you can be officer, you can be a commander, you can be a sales officer, you can be an entrepreneur. तो आप क्या कर सकते हैं? बिजनेसमैन बन सकते हो, क्योंकि दूसरों से काम कराना है। मैनेजर क्या करेगा? दूसरों से काम कराएगा। ऑफिसर क्या कराएगा? दूसरों से काम कराएगा। कमांडर क्या कराएगा? दूसरों से काम कराएगा। सेल्स ऑफिसर क्या कराएगा? दूसरों से सेल्स करवाएगा। सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, आपके ये करियर आपके लिए अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम लाइफ में आई और उसमें आप डीप डाइव करते हो, अंदर तक सोचते हो, कुछ लोग बिल्कुल बाल की खाल निकालते हैं, देन यू कैन बिकम इकोनॉमिस्ट, यू कैन बिकम लॉयर, यू कैन बिकम engineer, research engineer, you can become research analyst, you can become psychologist, you can become physician, you can become surgeon, because they have to deep dive in the problem. वो सरफेस पे रह के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलते। डॉक्टर पहले क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है। पुलिस ऑफिसर क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है। रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है? डीप डाइव करता है। लॉयर क्या करता है? केस में डीप डाइव करता है। अगर आपको ये पसंद है डीप डाइव करना, तो आप ये बने। और अगर आपको पसंद है कि आप गुड फॉलोअर हो, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचना, सोचने का काम किसी और का है, मुझे तो जो कह दोगे बस वो कर दूंगा या वो कर दूंगी, इन केस यू आर लाइक दैट, देन you be a big banker, you be a clerk, you be a finance expert, you become data analyst, you become credit manager, you become a clerical job wherein you need not to decide anything, you have to follow the rules decided by others for you. रूल्स के हिसाब से जो काम है, 9 बजे ऑफिस आना है, 5 बजे ऑफिस से चले जाना, इन फाइल्स पे काम करना है, दैट्स इट। आपको कुछ नया नहीं सोचना, तो ये करियर्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं जहां आपको सोचना नहीं है, बस दूसरों को फॉलो कर देना है। एंड देन अगर आपको लगता है कुछ नया करना है, हमेशा कुछ नया करना है, अगर आपका मन नया करने के लिए करता है, देन
You become artist, singer, musician, actor, interior decorator, interior designer, writer, public relations specialist, reporter, interior decorator. अगर आपको कुछ नया करने की पसंद है तो, और अगर आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, जैसा किसने कहा था आज, या किसी बच्चे ने कहा था, उसे हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता है, कि अगर टिफिन में आपको मदर ने 3 चपाती रखी, और अगर आपके कोई फ्रेंड लंच लेकर नहीं आए स्कूल कॉलेज, तो आपने फट से क्या किया, उसके साथ लंच शेयर कर लिया। तो ये आप हेल्पिंग हैंड हो, आपको हेल्प करना अच्छा लगता है। रास्ते में किसी को कुछ जरूरत थी, आपने देखा देखा आपके पास कुछ पैसे थे, आपने उसको दे दिए, यू आर हेल्पिंग हैंड, आपको हेल्प करना अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देंगे नहीं, कुछ भी हो उनके पास, देंगे नहीं। तो अगर आपको देने का मन है, देते हो, अच्छा लगता है, यू कैन बी अ काउंसलर, यू कैन बी अ सोशल वर्कर, यू कैन बी अ एनजीओ वर्कर, यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ नर्स, यू कैन बी अ थेरेपिस्ट, यू कैन बी अ डॉक्टर। इन सबको सेवाएं देनी होती हैं, सर्विसेज देते हैं, ये लोगों को बांटते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बांटते नहीं हैं, तो जो नहीं बांटते उनके लिए वो क्या करेंगे, वो जाएंगे टैक्स कलेक्शन में, गवर्नमेंट में, जहां बांटा नहीं जाता, सिर्फ इकट्ठा किया जाता है। और जो लोग बांटना पसंद है वो सोशल वर्क में जाते हैं, पब्लिक सर्विसेज में जाते हैं, जहां लोगों को कुछ बांटा जाता है। सो गॉट माय पॉइंट। अब आपको कुछ क्लैरिटी हुई बच्चों? हाँ सर। यस सर। अब आप बताओ आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं? यस, क्या डिसाइड हुआ, आपके इंटरेस्ट कौन से हैं, और आपके पर्सनैलिटी ट्रेट कौन सा लगा आपको कि मेरा ये वाला स्ट्रांग है और मेरी ये वाली एबिलिटी स्ट्रांग है? तीनों चीजें आप यहाँ एक बार इकट्ठी लिख दें चैट बॉक्स में, और अपने पास भी लिख लें कि व्हाट इज स्ट्रांग विद यू। सर हमारा लाइक कौन सा करियर वो सही लगा, कौन सा करियर सूटेबल लगा, ये आपने जो दिखाया उनमें से, राइट? नहीं, आपको सिर्फ 3 चीजें, करियर अगर आपको शूट किया तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट कौन सा स्ट्रांग था। और इसमें कॉमन आएंगी चीजें, जैसे मैं एक बार जल्दी से इसको सारे को मैं वापस एक बार दिखाता हूं आपको। अगर न्यूमेरिक एबिलिटी है तो कौन सा करियर था, ये 4 चीजें थी। जिनकी मैकेनिकल एबिलिटी है तो ये 4 था। जिनका वर्बल था उनको ये 6 ऑप्शन थे। और जिनका मेंटल एबिलिटी थी उनके पास ये 8 ऑप्शन थे। उसके बाद जिसकी स्पेशल एबिलिटी थी उनके पास 10 ऑप्शन थे। अब इसमें कॉमन भी निकलता है तो आप नोट कर सकते हो अपने पास। ये वीडियो एक बार फिर वॉच कर लेना कल, कोई जल्दी नहीं है। पर्सनैलिटी में आपका ट्रेड प्रैक्टिकल थे तो ये वाले ऑप्शंस आपके पास। अगर आप इमेजिनेटिव थे तो ये ऑप्शंस आपके पास। इनको लिखते जाना नीचे, आपको जो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपका करियर बनता है उन सबको लिखो, और फिर एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो बनता है उन सबको लिखो, फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो बनते हैं उनको सबको लिखो। उनमें से जो कॉमन निकले और जो आपको पसंद हो वो आपका बेटर करियर है। ये इंट्रो था, ये एक्सट्रो थे, ये आपके इंटरेस्ट बेसिस करियर थे। तो इंटरेस्ट बेसिस जो ऑप्शन है इन सबको लिखना ऊपर नीचे, 3 लाइंस ड्रॉ करना, और उन 3 लाइंस में आप वो सारे करियर्स नोट कर देना। समझ में आ रहा है बेटा कैसे करने? यस सर, एक्चुअली सर हम्म नंबर 3, 4 और लास्ट में जो हेल्पिंग नेचर था ना, इसमें मेरे को दिख रहा, क्योंकि जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स, उन लोग हमेशा मेकन से आते, एडवाइस लेते, और कभी कभी मैं कंफ्यूज भी हो जाती, मतलब ये करूँ या क्या करूँ बोल के। पर मैं अगर जो भी करेक्ट आंसर दी तो ना हमेशा आके मेरे से पूछते कि भाई क्या करूँ मैं, ऐसा सिचुएशन हुआ मेरे साथ, तो तुम मेरे को एडवाइस दियो। तो मतलब बहुत सारे जने आते, मतलब फ्रेंड्स जो भी है एडवाइस लेते हैं मेरे से। और मेरी हेल्पिंग नेचर भी है, मतलब कोई भी अगर मुसीबत में रहा है कुछ भी, मतलब मेरे से जितना होता मैं हेल्प करने की कोशिश करती सब। तो मतलब इतने 3 चीजें मैच हुए इसमें से। हाँ, तो इन तीनों को अब बेटे, ये जो 3 इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी, तीनों के बेसिस पे जो करियर ग्रुप्स आपके मिले, चाहे वो 3 ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, उनको इकट्ठा लिखना
और फिर उसमें से कॉमन ग्रुप बनाना है आपको कि मेरा कौन सा कॉमन आ रहा है, और अगर मान लिया कॉमन आया 2 और उसमें से एक आपको अच्छा लगता है, so that is your career pathway. You should opt that career for your great success. That particular area, it is not specifically career, that area, in case you operate in that particular area, in case you choose that particular area to get your career, to just shape your career, then you will get great success, more success than other career options. तो आपको एक clarity आई कि मेरे पास क्या था. You peeped inside yourself and you find out something which was strong with you, and according to that what career options you should have for you. ये clarity आपके mind में आ गई. And ये exercise sir. एक बार वीडियो वॉच करके कल फिर करोगे तो ये बहुत क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा. इज दैट ओके? Yeah, sir. Okay. चलिए, नाउ अब इसको लिस्ट आउट करना है आपको. ये करियर ऑप्शंस को लिस्ट आउट करके प्लीज सेंड दीज लिस्ट टू in this WhatsApp group to me, and you can connect me over phone also. Please do not hesitate. ठीक है? Okay, Do sir. connect whenever you feel that you have no clarity about this. You can connect me and I can help you, beta. I will try to help you to shape the right career option for you. Good. Chatura ने तो लिख दिया, imaginative, extrovert and verbal ability. Good, Chatura. And on the basis of these things, which are the career options according to this list, you should put it there. Now list out your career options. You have to list out your career options. After that, set your realistic goal. Like Chatura has identified, she is expressive, she is extro, and what are the career options for her? She can be a politician, she can be a manager, she can be a public relation officer, she can be a lawyer, she can be a teacher, and there are so many careers of this field. So now which career she should opt for her life to get success, उसको क्या बनना है, उनमें से किसी एक को अभी चूज कर ले. यस, चतुरा बेटा, कौन सा करियर, एक प्राइमा फेसी अगर हम पूछें तो आप उनमें से किसको प्रेफर करोगे ऑप्ट करना? भी लाइक थोड़ा कंफ्यूजन है कि राइटर एक है जिसमें आई थिंक कि मैं अच्छी हूँ, बट लाइक मुझे पता नहीं है वो अचीव कैसे करना है. हाँ नहीं, वो एक अलग बात है बेटा. अचीव करना तो वो हमारी जिम्मेदारी है. आपको अचीव करना तो अभी बाद में आना है. अभी तो बनना क्या है, राइटर और स्पीकर. राइटर बहुत एप्लीकेबल लग रहा है. चलो आप अभी लिख सकते हो राइटर को. राइटर को प्रेफर कर बहुत सकते हो. सूटेबल. हाँ, बहुत सुटेबल है. तो राइटर इज ऑप्शन 1 एंड स्पीकर इज ऑप्शन 2. यू कैन पुट इट लाइक दैट. ठीक है? तो आपने एक चीज सामने आ गई कि आपने लिस्ट आउट कर लिया और गोल बना लिया. आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, और आई वॉन्ट टू बी अ स्पीकर, और आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट, or I want to be a lawyer. So that should be your realistic goal to become in your career, to get success in your career. So that is the next step. After that, design your pathway. In case she want to be a writer, then she should practice, she should learn writing skills, presentation skills. So she should decide entry route to that destination point. You want to be a writer, then you want to become writer, you should study journalism and mass communication and journalism. So she would go in the journalism, and in journalism there are masters in journalism. She has to study masters in journalism, then bachelors in journalism. In case she want to go through that, then let's do reverse engineering. She want to be a journalist, and to become a journalist or writer, then she should do masters in journalism, then bachelors in journalism, and to study journalism. So she can take any subject stream in 11th and 12th. She can be a journalist through humanity. She can be a journalist through commerce. She can be a journalist through arts. So now she has to decide which topic of journalism, at which subject she should write. So in case she decide to write on science kind of subjects, then she should study science in 11th and 12th.
And in case she want to write on commercial aspects, commercial subjects, then she should study that. And in case she want to write for public welfare, art kind of things, then she can take humanity. So she is free, she can take any subject stream in 11th and 12th to study journalism. Got my point? And now she has to decide which course has little bit is being identified that she can go for journalism kind of things, and that course is bachelor in journalism, and the college is required to be decided. So there is 2 years, 2-3 years duration so far. Then after 12th, what college she should study, which college is the best for her. So that is required to decide now. But a lot of things are clear in her mind now. चतुरा, अभी कुछ clarity है बेटा? हाँ सर, पहले से तो बेहतर क्लैरिटी बेहतर है. अगर ये एक्सरसाइज आप 2-3 बार करें तो ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे जाना कहाँ है. फिर ये चीजें बड़ा इजी हो जाएंगी, कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स करना है मुझे, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करना है, ग्रेजुएशन कहाँ से करना है, सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या लेना है. ये चीजें बहुत क्लैरिटी से आपके माइंड में आ जाएंगी. तो ये था बेटा आज का सेशन. अगर यहाँ आपको अभी भी ये आज आपको जो क्लैरिटी हुई है, that is 10 to 20% clarity about yourself, your career. But in case you want to get the entire clarity, it would require your efforts. It would require some guidance from some professionals. In case you have somebody in your surrounding, in your city, please connect with him or her and just work with the professional counselor, and he or she will guide you to get the right fit option for you based upon your own strength, your personality trait, according to your family environment, according to your financial and economic structure of your family and your city. तो ये सारा काम बेटे एक करियर के लिए हमें करना पड़ता है, और ये बहुत अच्छी तरह से अगर हम कर लें तो जिंदगी में हम क्लब बी से क्लब ए की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जो कुछ हमें जिंदगी के लिए चाहिए वही काम हम अच्छी तरह से हर एक स्टेप पर हमें वहाँ हैप्पीनेस मिलती है. हैप्पीनेस किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर नहीं मिलती, हैप्पीनेस डेस्टिनेशन की तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मिलती है. जैसे हम पिकनिक पे जाते हैं तो पिकनिक स्पॉट पर जाने पर सिर्फ वहाँ खुशी नहीं मिलती, पिकनिक की तरफ हर एक कदम बढ़ता है ना, तो हमें खुशी मिलती जाती है. सो आर यू एग्री विद मी? Yes, sir. Any Yes, sir. advices for me, sir? Yes, please. Any advices for me? Rafat, yes, what you decided for you? Still, I'm not decided, but I know my abilities. So I'm good in English communication. English communication is good with you, and And you writing like also. singing also, and you want to do things from your Writing. hand. So you do one thing, beta. So English communication means communication. What is strong with you? You speak well or you write well? I speak well and also write well. Both are my good things which I do. So if you so just give me one input. So do you think well or you speak well? I speak well. अच्छा, आप बड़ी आसानी से अपने को एक्सप्रेस कर देते हो लोगों को? Yes, sir. ग्रेट. और अपने हाथ से काम करना आपको पसंद है? Yes, sir. ओके. तो आप क्या करोगे, आप चतुरा की तरह अपना वर्बल एबिलिटीज के बेस्ड करियर्स को एक साइड में लिखें, और फिर आपका इंटरेस्ट है रियलिस्टिक, जहां आप अपने हाथ से काम करते हैं, उन करियर्स को नीचे लिखें. और दोनों हो गए. पर्सनैलिटी में आपका हो गया, आप एक्सट्रो हैं, आपको कम बोलना, अकेले में रहना, भीड़ से बचना अच्छा लगता है, या लोगों में रहना, लोगों के साथ बात करनी, बाहर रहना अच्छा लगता है? लोगों में रहना बहुत अच्छा लगता है. तो आप एक्सट्रोवर्ट हो, चतुरा के जैसे ही हैं आप बिल्कुल. आपकी चतुरा की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स और उनकी एबिलिटीज हैं, उन जैसे चतुरा ने डिजाइन किया वैसे ही तीनों चीजों को आप अलग से लिखो और लिख के मुझे डालना, उसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है. देन उसमें 10 मिनट हम 1-on-1 ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ना उसमें से एक टॉपिक आपके लिए निकाल देंगे. ठीक है बेटा? जी बेटा.
सर एक्चुअली ना मैं नोटिस करी मतलब स्टडी से हटके प्रैक्टिकल और हार्ड वर्क करने में मेरे को बहुत अच्छा दिखता। मतलब जैसे कंप्यूटर में बैठ के कुछ तो भी काम कर लेना, ऐसा मेरे को अच्छा दिखता। या वीडियो एडिटिंग करना, वीडियोस बनाना, मतलब देन जो रहते ना, देन अभी तक आपने क्या किया है उसमें बेटा, कुछ किया है? मतलब नॉर्मली मतलब कभी कभी मतलब अकेले फ्रेंड्स के साथ रहते तो एनीमे बनाना, मतलब कार्टून्स बनाना, ऐसा कुछ। सो यू आर क्रिएटिव एंड इन्वेस्टिगेटिव बेटा। आप आईटी रिलेटेड, आईटी एंड आईटी बेस्ड डिजाइनिंग, इस डायरेक्शन में आप कोई अपना करियर शेप करो। आप एनिमेटर बन सकते हो, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो, आप डिजाइनर बन सकते हो, आप आईटी को स्टडी करो या आईटी बेस्ड आर्ट को स्टडी करो और उसमें एक करियर बनाओ बेटा। ठीक है सर। ठीक है, उसमें कितने करियर अवेलेबल हैं? सो आई हैव कंप्लीट लिस्टिंग विद मी, सो वी कैन कनेक्ट वन ऑन वन। आपको अगर उसमें और एडिशनल हेल्प चाहिए तो यू कैन कनेक्ट मी ओवर मोबाइल फोन between 10 to 12, or you can keep writing me over this WhatsApp also. So उसको ओके जितना सर। ज्यादा इस पर मेहनत करोगे ना, थोड़े दिन आपको क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगा कि दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया एंड यू शुड गो विद दैट ओनली। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सर कि मेरे को ना मतलब नए नए चीज़ें करना बहुत पसंद, तो मैं करती हूँ भी, लेकिन पक्का मतलब वो नहीं है कि हाँ ये चीज़ मेरे को पसंद है। मतलब हर चीज़ मतलब बदलते रहती। कभी मतलब सिंगिंग करना पसंद, कभी डांसिंग करना पसंद, या क्रिएटर बनना पसंद। मतलब कुछ ना कुछ मतलब बदलते रहता है, ऐसा मतलब बट इट इट पक्का इट एक नहीं मींस है। इट मींस यू हैव आई मीन क्रिएटिव नेचर। आपको नया करना पसंद है, एक ही हाँ। चीज में बहुत देर तक बैठ के आपको अच्छा नहीं लगता। सो हाँ हमेशा सर। आपको चेंज चाहिए। यस सर। तो क्रिएटिव माइंड हो तो आपको क्रिएटिव काम ही करना है। आईटी और क्रिएटिविटी दोनों को मिक्स करके करियर बनाओ अपने लिए। दैट्स द वे। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू एवरीवन। So in थैंक case यू you सर। require any professional help, so you can write to me, and we are here just to support you. And in case your friends are there, those who want to get such kind of support, please connect them. So this is a good social work. अगर आपका कोई बच्चा, दोस्त, बच्चा ऐसा है जो उसको ये सपोर्ट की जरूरत है, आप उसको गाइड करना जैसे मैंने किया आपको, और आपको लगे कि उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, तो यू कैन कनेक्ट हिम और हर विद मी। या श्योर सर। ओके, Sir, थैंक यू। यस प्लीज। sir, what is your So timing what's your name? number? So my name is Lokman Singh, and I'm a career counselor, and I'm working with the United Nations. United Nations is sponsoring career counseling program in India. So I'm taking Mhm. care for 8-9 states of North India. So far, I have connected with around 5 lakhs students so far, and just one-on-one and group counseling, and that is my I mean career experience. What's your number? So Number, what's your number? just a So minute. you give it in the WhatsApp group? Yeah, Yeah, so yeah, it is there. What is the number? There are so many numbers. yes, so this is Keep my it. number, and with me Satya is also practicing the same thing. So Satya is can a you? good, yeah. So these are two numbers. The top 9499166350. This is my number, and 8586862608 is my fellow Satya. So we both practice digital marketing and career guidance. So you can connect with us, and I'll put these numbers in WhatsApp group also. Okay. Okay. So for what's the timing for Thank you connecting? very much. That is 10 to 12 a.m. 10 to 12 a.m. 10 Okay, to sir. 12 a.m. every day, Monday to Saturday we are available. Sunday we are not available at this time. Okay. So then, are you charging anything for counseling in future? In case you are going to have assessment of the child, because Mhm. assessment is a very essential kind of thing, then Mhm. it is chargeable. But if you just want to have consultation, then you need not to pay anything. So in case you have psychometric assessment, then it is chargeable. So Okay. How I much is the charge? So that we can discuss, sir, according to your requirements. What is actually what standard the child is,
what is the requirement, so that the different slabs, so we can discuss it one on one in case it's your requirement. Yes, please. Sir, I'm a Prime member. Still need to pay for this, or I will have regular classes for it. So actually, Prime membership is for digital marketing, Bete, and this is career counseling, which is this is entirely different thing. So if you are going to have this, then you have to pay for that. For digital marketing, you need not to pay anything. So my son is doing a digital marketing course at present online. So I don't know, Miss. How, I don't know. I'll have to ask him only what question is what he needs actually. Okay, you can connect him with me between 10 to 12, me or Satya. And, so whatever doubts he has, so he can ask. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you. One advice to all the parents, एक सबके advice है, that is, I think, the most important. How much career information you have means, let's suppose you want your child to do MBA, or let's suppose your son or daughter want to do engineering, etc. But nowadays, finding the right college is most important, and you should have some information about the right college and what trend is happening. So for that, there is one book, the one magazine that's called Careers 360. And it is only India's magazine that offer entire career guidance. The cost is around 60-70 rupees only for it is monthly magazine that you can subscribe, and that will enhance your career knowledge, what is going on, what is in demand, and of course, which is the topmost college. Why? Because searching the college, sometimes it happens the ranking mentioned in the newspapers and in the magazine is not up to date. Sometimes it is biased, sometimes it is paid also. Okay, so it will be better if you enhance your career information. If I ask all the parents, please do not feel odd. Do you know any career guidance YouTube channel? Just type yes or no in the comments. Please be straight. Do you know? Just type yes or no. Please No, just type sir. no. Do you know any book which is offering career guidance options? Yeah, I had taken one book when my child was in 10th and 12th standard. Okay. The careers which it was given from the college itself actually. It was given by the college itself, ma'am. So make sure you are earning for your child, and all the students are studying to get the good job, and or they can start their own business. It's up to them. But knowing the right career, knowing from where you can get the good, authentic source of career information, you should search from now which are the topmost career guidance YouTube channels. There are many ones. Second, which is the magazine, monthly magazines, which provide good quality of career information. So career assessment, definitely it will help you to get the right choice. But knowing about the right college, right course curriculum, and right faculty is most important. This is, I think so, you should all, I should say, you should buy that particular magazine because it is very informative, very informative. Okay. Yes, Careers 360 is website also. It is website also. So it will be better if you have one magazine. Please go for the magazine because magazine is very good. I will not have any comment on the what type of psychometric they are offering because मैंने बहुत दिन पहले एक बच्चे से करवाई थी, but it is not good up to the mark. वो इतनी अच्छी नहीं थी. ठीक है. So it will be better because by the monthly magazine they get lot of crowd for psychometric assessment वगैरह, but the quality of assessment is I will not recommend. ठीक है. तो मैं आपको जो clear advice बता रहा हूँ, तो it will be better if you enhance your career information. That is, this I would say, this is most important with the career assessment. And that's all for that. Which magazines we should refer? There is one magazine is there, Careers 360. I will send you the one link that you can particularly buy from that particular website, ma'am. And YouTube channels, you said which one? YouTube channels, there is Freshers World. One is of Praveen Malhotra. I will send you the links in the YouTube in the content also. Okay, in their group, ma'am. Okay. Thank you, sir. But I would love if you search from your side also, at least. And secondly, the most important advice, before your child, before your son and daughter pass your graduation, at least they should have the privilege to meet 50 professionals. Let's suppose Chatura want to be a doctor. Okay, Chatura.
हेलो चतुरा, व्हाट यू वांट टू बिकम? क्या बनना चाहते हो आप? अभी तो लाइक तब भी राइटर. राइटर. हैव यू मेट एनी राइटर? No. Any successful writer? Okay. Rafat, what do you want to become? Manager. Manager. Have you met any manager of 10 years experience? What Yes. happening, please? एक चीज बात समझिएगा आप सब लोग, students and parents, especially students. There is one person, one student in my childhood. His brother was merchant navy, and my brother was fair. Oh, merchant navy में फौरन जाने को मिलेगा, ये करेगा, वो करेगा. And he tried to join the merchant navy, but he can't able to join. His friend joined. But after 10 years in merchant navy, he says, Satya, I am getting well of money, but I can't able to enjoy my family life. Okay, so make sure each and every parent, I request parent to at least try at least before passing 12th, or it will be better if you before passing 12th examination or between the graduation, at least they should meet what they want to become. तो आप जो बनना चाहते हैं, but at least they should have privilege to meet the professional of that field. It is easy, it is not so tough. You can go, जैसे आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, सिनेमा आ जाते हो. Make sure if somebody want to become CA, at least go to any CA, please. This my daughter want to become CA, please guide him. Is it right step or not right step? What is the working? Do not ask for salary, how much you are earning. No, it is I would say it is the worst thing to choose the career. Sir, what is the working condition? Are you enjoying your life? Are you enjoying your family life? Okay, earning is not important. आज का सब कमा लेते. You will be surprised to know that आने वाले टाइम में earning will not be key issue. लोगों के पास सब कुछ है, आप समझिए. 10 साल पहले लोगों के पास they don't have the resources. Now we all have resources. But nowadays खुश रहना सबसे बड़ी कला है. खुश रहना सबसे बड़ी कला है. I have seen many person commit suicide at the topmost level. Okay, मेरे घर में भी 4 suicide हो चुके हैं. To be frank with you, 4 suicide. One of my real brother committed suicide in 2012. BTech last year he committed suicide. He was a very good student, always used to get 85-90% marks. So means it is not important how much qualified you are, how much you are earning. The most important, क्या आप जिंदगी जीने की कला जानते हो? क्या आप खुश रहना जानते हो? That is the most important. So for which money is not the primary source. The most important, the working condition, how you work, the timing can you give to family, or you have to work outside, or देखिए बहुत चीजें मैटर करनी पड़ेंगी. तो make sure हर पेरेंट कोशिश करे एटलीस्ट कि आप महीने में एक प्रोफेशनल से मिलाओ, या 2 महीने में एक प्रोफेशनल से. वे यू कैन मीट, प्लीज आई एम गिविंग यू. हाँ, मैं कैसे मिला सकते हैं? कोई आपका फैमिली मेंबर ना हो, प्लीज अवॉइड योर रिलेटिव को नहीं मिलाना, बिकॉज दीज आर द पर्सन वो नेवर वांट योर, मतलब मैं कहूँ लिटरली वो असल भलाई नहीं चाहते. बहुत, मेरे तो नहीं चाहते, आपका होगा तो मुझे मालूम नहीं. ठीक है, तो आप कहाँ कर सकते हैं? Go to any college of that particular field. Let's suppose आप CS करना चाहते हो, कुछ कोचिंग सेंटर who teach CS, तो CS वहाँ पढ़ा रहा होगा. Let's suppose वहाँ आप मिल सकते हो. Second, search online CA in Delhi. Call them, sir, my child want to do this and this something. You have 15 minutes. Please do not pay for that service. Do not pay. वो चीजें बताएगा जो मुझे ना बताए. Let's suppose if Chatura want to be dental surgeon. Okay, let's suppose, okay, I am dental doctor, I am a dentist, then I will let you know which is the college, what's the drawbacks you have, okay, which is the career opportunities, etc. मुझे पूरा डिटेल बताऊंगा उसको कि करना है कि नहीं करना. तो then you will have the ground experience. Nowadays parents as well as students as well as the career counselor, to be frank with you, they do not have ground experience knowledge of that particular field. आप समझ रहे हो? तो मीन्स मिलना बहुत जरूरी है. कितने पेरेंट आज प्रॉमिस करते हैं कि अपने बच्चों को जो 12th क्लास से कम है एटलीस्ट इस साल 20 प्रोफेशनल से मिलाएंगे. जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन. इट मे साउंड समथिंग आई वुड से हार्श, बट एटलीस्ट जस्ट टाइप यस और नो. I will think, ऐसे मत लिखना प्लीज, जस्ट टाइप यस और नो. मिलाना तो चाहते हैं, लेकिन कांटेक्ट कैसे करें? मैं कांटेक्ट बताया ना मैं आपको. सर्च ऑन द नेट, सर्च द पर्टिकुलर कॉलेज जो नहीं, हम लोग उनसे बात करेंगे तो हाउ
reply, respond, I don't know. मैम मिल सकते हैं, But they समझिएगा will be interested to meet a child. मैम, मिलते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, कोशिश करो। इवन आप उस कॉलेज में लेके जा सकते हैं, स्टूडेंट से मिल सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं। एटलीस्ट दे विल, इवन बीटेक 4th ईयर स्टूडेंट कैन टेल यू द ग्राउंड रियलिटी कि सर हाउ मच सैलरी इज दैट, इज देयर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन इज नॉट, दे विल टू टेल द होल स्टोरी, ग्राउंड रियलिटी की पता लग जाएगी। इवन लास्ट ईयर स्टूडेंट होता है वो भी आपको सब चीज बता देगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अगर आप देख, तरीके बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गो टू क्रोम, सर्च प्रोफेशनल्स ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, देन द नंबर विल शो, देन यू कैन कॉल देम, सर हैव डॉटर एटसेट्रा, यू कैन हैव द जूम मीटिंग, यू कैन हैव 1-to-1 मीटिंग, ये आप कर सकते हो। और सबसे बढ़िया, उस फील्ड के स्पेशलिस्ट आपको उस कॉलेज में मिल जाएंगे, पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डालो, मिल जाएंगे। थोड़ी आप प्रयत्न करोगे, आप यकीन नहीं करोगे, आपके सराउंडिंग आप देखो, आपके कॉलोनी में कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा, आपको मिल जाएंगे। पर कभी कोशिश तो करो, अभी कोशिश किया नहीं, वो कोशिश करो, डेफिनेटली यू विल गेट। और इवन डोंट बिलीव, अपने प्लेटफॉर्म में जिन हमारे साथ बहुत लोग अलग अलग फील्ड के जुड़े हैं, ठीक है, कविता मैडम है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी का हस्बैंड डॉक्टर है, तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। कितने लोग प्रोफेशनल जुड़े हैं अपने आप हमारे कोर्स में मैम, ठीक है, तो वी कैन कनेक्ट यू देयर। क्यों मैम, अलका मैम, हम कब कमाएंगे आपके? ओके, ये भी आप कर सकते हो। तो मीन्स एटलीस्ट मिलवाइए, एक बार फोन पे बात कराइए, बहुत चीजें आपको जानने को समझने मिलेंगी जो शायद ऑनलाइन अवेलेबल ना हो। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से। सो दैट थैंक यू लोकमान सर, एंड थैंक यू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर दिस वंडरफुल सेशन। Sir, Chatura is my daughter. You have seen her, na? ओके, ये आपकी बेटी है? चतुरा। मुझे नहीं पता था मैम, नहीं पता था चतुरा, मुझे। मुझे लगा सरनेम से आप जान जाएंगे। नहीं मैम, मुझे नहीं पता था मुझे। यही 10th में है अभी। अच्छा, यही छोरी 10th में से है? हाँ, ICSE बोर्ड। हाँ, Yes, sir. Hello. हेलो, चलिए 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 मैम, ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे फिर। और मेरी ये बात ध्यान रखना, वन करियर मैगजीन, सेकेंड इंटरेक्शन। अच्छा, मैं चाहता हूँ कोई पेरेंट्स हो, वो आज का हमें फीडबैक दे, आपको सेशन कैसा लगा, एंड हाउ विल यू अप्लाई दिस टेक्निक्स ऑन योर किड, कैसे अपने बच्चों पे टेक्निक अप्लाई करोगे। प्लीज कोई भी वीडियो ऑन करके बोल सकता है, प्लीज। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। Sorry, Atma Namaste. Sorry, I've got a habit of saying Atma Namaste because being a Puranik healer. So actually, the techniques which you showed us, you guided us, it's a very nice way you guided us actually. And the ideas which you told us, meeting the people and going through the magazine, I've done these things with my children, but I don't know why they're not able to get clarity about their career. Because I get tense because of that only. Means the younger son actually is very talented person. Means he scored 93 in 10th standard and 85 in 12th standard. But then at the end, after the 12th standard, he couldn't get the clarity which side he should go. But then we have to, actually he wanted to go for hotel management, but then we were a little against it because we didn't wanted to live him the way that we were living the life. It's 24 hours duty, no holidays and nothing like that. So he opted for BSc Biotechnology, but then in further he felt, no, I don't want to go for BSc Biotechnology. Means I don't want to go for biotechnology, I want to go for MBA. Means at this end now, being a talented student also, he doesn't have clarity of the mind. So I thought maybe this can be helpful for me also, because whatever the points you shared with us, I think it will guide him also, because he was also online. I can guide him. Means I can have a little bit clarity of thoughts. Means discussion with him. Means now I can understand what he's actually, what basic qualities he's got in himself, so that he can get through his career in a right way, I feel. Thank you, ma'am. Sir, today's session was excellent. What I suggest, sir, whatever you have said ना कि हम लोग अगर बच्चे के लिए किसी प्रोफेशनल से मिले, तो आपने बीच में एक बार बोला था ना कि आप ये ऐसे सेशंस करेंगे, तो दैट विल बी बेटर सर, कि अगर आप जूम से हमें मिलाएंगे लोगों से,
कि अलग अलग प्रोफेशनल्स है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है या से सीए है, और उनके खुद का मतलब लाइफ एक्सपीरियंस या स्टडी करते समय जैसे स्टूडेंट्स को बहुत difficult होती है पास करना, सीए पास होना वगैरह, तो दैट वे जो भी एक्सपीरियंस है ना, आप अगर जूम से हमसे इंटरेक्ट करवाते हो तो दैट विल बी ज्यादा अच्छा होगा कि आप भी कुछ डायरेक्टेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो उनको, आपके गेस्ट है करके। मैम पूछ आपका सकते हैं। अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है? हाँ हाँ अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, दैट विल बी ऑन संडे। हाँ, संडेज को होगा 10 से लेके 12 के आसपास। अच्छा, वो तो हम कर लेंगे। दैट विल हेल्प अस अ लॉट। एंड मुझे तो लगता है कि ऐसे अगर सेशंस होंगे तो मैं चतुरा की सभी फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करने के लिए बोल दूंगी, क्योंकि ना सच्ची जरूरत है बच्चों को। आपका सजेशन बहुत ही अच्छा है कि ये जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, ये किसी प्रोफेशन के बारे में ना हमें सिर्फ दूर से पता रहता है कि हाँ हाँ ऐसा है, लेकिन बाद में रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट। देखिए अंतर ये, देयर इज डिफरेंस। लेट सपोज आई कॉल एनी मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है? तो वो कई बार ऑनलाइन उसे पता है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वो यूट्यूब पे जाएगा, तो कई बार एक बेटर रियलिटी नहीं बताएगा जो आपको 1-to-1 पर्सनली बता देगा। मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने आपका आर्मी का डेंटल कॉलेज है सिकंदराबाद में, टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेज आता है, वहाँ से उन्होंने बीडीएस करने के बाद मेरे पास में डेंटल क्लिनिक खोला। एंड उसकी जो इनपुट बता रहा हूँ कि सत्या हालात ये हैं कि डेंटिस्ट को जॉब फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, समझ रहे हो? वो उसके वर्डिंग थे। तो मैं कहा कैसे? तो पूरा डिटेल उसने बताया, क्या मार्केट की डिमांड है, कितने लोग आ रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ। तो ये जान के मैं हैरान हो गया, पर क्या ये चीज वो ऑनलाइन बताएगा? आप समझिएगा। तो कई बार बहुत जो बिटर ट्रूथ होते हैं, हो सकता है वो ऑनलाइन न बताएं। ये बात थोड़ी सी आप समझिएगा। जो वो आपको 1-to-1 बता दें, पहली बात 1-to-1 बता दें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। बस ये थोड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट आ जाता है। सेकेंडली, अगर से हम स्टार्ट करेंगे ये 1-on-1 सेशंस विद डिफरेंट स्पेशलिस्ट ऑफ द डिफरेंट फील्ड, पर हम कोशिश करेंगे सारे स्पेशलिस्ट नॉर्मल हो, कोई आईआईटी का ना हो, कोई एनआईटी का ना हो, ताकि वो ग्राउंड रियलिटी बताएं। कई बार मैं जानता हूँ 98% बच्चे आईआईटी नहीं जा पाते, 95% बच्चे एनआईटी आईआईटी नहीं जा पाते, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? वो लोग जब बोलेंगे तब ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। तो शायद मैं उसको तब उससे आप बेटर कनेक्ट कर पाए, बट एटलीस्ट अपने एंड से प्लीज आप कंटिन्यू करके रखना, ताकि बहुत चीजें आपको पता लग पाएंगी जो शायद वहां से भी ना पता लग पाए। आप भी सही है, लेकिन सर स्ट्रेंजर्स हमसे वो ग्राउंड रियलिटी शेयर करेंगे क्या? मतलब फॉर अननोन देखिए मैम, मिलने जाएंगे तो बहुत वो क्या टाइम सच्चाई बताएंगे? नहीं, शेयर बहुत टाइम करेंगे? क्योंकि शेयर इसमें करेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना हम पे। देखिए मतलब मैं उनको लगेगा ये तो बाहर की जस्ट एक 10 मिनट के लिए मिलने आए हैं या 1 घंटे। नहीं मैम, आप अगर कोशिश करेंगे, जब मैं क्लास 12th में था, तो मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ 1-to-1 जाके, ठीक है? तो मुझे, पर मैं लड़का था, मैं मेरे पेरेंट्स को साथ में नहीं लेता था कि कैसे कैसा है। और जो एक्स स्टूडेंट्स है वो, उससे पता लग जाएगा आपको। चलो प्रोफेशनल्स ना हो, एक्स स्टूडेंट से मिल जाएगा, पर एटलीस्ट यू विल लर्न लॉट मोर थिंग्स जो शायद आपको गूगल में ना मिले। हमारे तरह से तो हम करेंगे ही, ठीक है, बट शायद अगर आप अपने एंड से करें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा मैम। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप सर्कल में देख सकते हैं, अगर आप अपने रिलेटिव ना देखें, बट अगर आप कॉलोनी में देखेंगे, एटलीस्ट बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जिनसे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ना वो गुड़ चीजें ही बताते हैं जो ऐसे कॉलोनी में वगैरह ना, अभी अब हमारे भी सोसाइटी में मैम बहुत से प्रोफेशनल्स है, बट दे आई डोंट थिंक दे विल टेल ग्राउंड रियलिटी। दे विल उसका तरीका मैम ये बहुत है, ही अच्छा है। जब आप करियर की बुक वो लेंगे ना, करियर की बुक जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना, उससे आप कई चीजें नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा पूछ पाएंगे, ठीक है? लेट सपोज मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूं या 3D एनिमेशन की बात करूं, तो उसमें बहुत सारे, इवन टू डिजाइन वन पर्टिकुलर सीन, लगभग 200 सेट्स होते हैं, 200 फ्रेम्स बनते हैं एक डिजाइनिंग के लिए। और यू वोंट बिलीव, जितने भी वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट जो एनिमेटेड फिल्म्स हैं, उसकी बैकएंड जो काम होता है, बैकएंड रॉ काम होता है, वो ऑलमोस्ट इंडिया में होता है, ऑलमोस्ट इंडिया में होता है। तो आप ये देखिए कि और सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैरियर फेयर्स होते हैं दिल्ली में, प्रगति मैदान में कैरियर फेयर्स होते हैं 2-3 दिन के।
कैरियर एक्सपोज होते हैं, ठीक है। करियर एक्सपोज में आप लेके जा सकते हैं, बुक फेयर में बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, इवन उनके टॉक शोज होते हैं, वहां लेके जा सकते हैं। तो इन चीजों को करोगे ना तो लिटरली आप बहुत, आप देखिए मुंबई हर जगह, आप तो सिटीज में होंगे, ऑलमोस्ट हर बिग सिटी में एजुकेशन एक्सपोज होते हैं, जिसके ऐड आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में तो पक्का आते हैं, वहां आप जा सकते हो। तो जाने में एक बार खोजना चालू करोगे लिटरली। वो सही है, लेकिन सर ना ये एजुकेशन एक्सपोज में ना वो अपना ही मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो भी मैंने देखा है, जो स्टॉल्स होते हैं ना वो लोग। मैम आप चलो वो बात अलग है, बट वहां आपको अलग अलग प्रोफेशनल्स तो मिलेंगे। देखिए जब आप खोजोगे तो एक बार स्टार्ट करोगे तो बहुत चीजें आपको जानने को मिल जाएंगी, बहुत चीजें जानने को मिल जाएंगी। लेट सपोज जिस लोकेलिटी में आप जिन लेडीज के साथ बैठते हो, कभी उनसे पूछ सकते हो कि भाई हस्बैंड जो काम करते हैं उसके वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे उन्होंने तैयारी की थी, क्या क्या डिफिकल्टीज तैयारीज में आई थी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप देखते हो कि भाई कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से कॉलेज होंगे, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, बहुत चीजें आप पूछ सकते हो मैम, बहुत चीजें। इवन देयर आर मेनी फेसबुक ग्रुप्स फॉर स्पेशली करियर का पार्टिकुलर करियर फील्ड, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ लोग डिस्कशन करते हैं। एक बार ना अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, एक बार एक्सप्लोर करना चालू करो, ट्राई डेफिनेटली करते हैं, चलो यस आपको ना अपने आप चीजें पता लग जाएंगी। हाँ, ये फेसबुक ग्रुप का आइडिया अच्छा है, दैट सी। हाँ चलिए, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट आप सबके लिए, और चलते हैं। Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय, Bye, sir. Thank you. Good Thank night. you, sir. Bye. Good night. थैंक यू।